morning to all of you, and I hope you are preparing well for your exams. So today, as you are aware, so tomorrow is your general English exam, and we are going to do our revision session for that. So let's quickly begin. So before I start, if you have any questions, any doubts, anything that you want to clarify, anything that you want to ask, you may raise your hands and let me know. And make sure your videos are on and you are sitting properly. That is one thing that is really important. Okay then, so just start. And before I proceed, okay, let me ask you if at least all of you are aware about the syllabus. So everyone should be very clear. Yes, Pratham, do you know what the syllabus is? Good morning, sir. Good morning. Yes, Pratham, so are you aware of the syllabus? सर नहीं अभी Are you a new student? सर नो सर 11th क्लास में यहाँ पे की थी. Okay, so try speaking in English. So basically, is it your first general English class? सही है. Okay, so it is a strange. Okay, so you are not aware about the syllabus. Okay, we'll discuss that. And are you aware about the syllabus of the other subjects? सर हमने एडमिशन लेट करवाई थी. Okay then. So okay, let me ask someone else then. Yes, Neeraj, I hope at least you must be aware. Good morning, sir. Yes, good morning. So what's the syllabus of our FA1 generalization? So, first chapter Hassan's attendance problem, and first poem A Prayer for Woods, and second poem on friendship. All right. And what about the grammar part? So grammar, noun, infinitives. So grammar da thoda clear. So you're not clear about the grammar part. Okay, Gurleen, do you know Good morning, what sir. grammar topics are supposed to come? Yes, sir. Yes. So first topic non-finite and second topic determiners. So non-finite verbs and determiners. Okay, so that's what the syllabus is. So okay, let's quickly share the screen and let's start the revision. So just a second while I share my screen with you. So I hope the screen is clearly visible to everyone. So let me know if you can see the screen, all of you. Okay, so that's good. And okay, let's begin. So let's talk about the syllabus first. So as per the syllabus, so we have the first topic that we have is Hassan's attendance problem, the very first lesson. And then just a second. And after that, the second thing is the poem Prayer of the Woods and another poem on friendship. And then we have two grammar topics, that is determiners and non-finite verbs. So that is what we are going to talk about in the next few minutes, in the next hour or so. So let's quickly move on to the first topic. So Hassan's attendance problem. So let's quickly revise it. तो इसमें जो मेन चीजें हैं Hassan's attendance problem में तो वो एक बार जरूर डिस्कस कर लें. So first of all we will talk about the main characters. So main characters क्या है, इसमें दो ही main characters हैं. So which are those main characters? Yes, Anmol Puri. Good morning, sir. Yes, good morning. Sudhamurthy and Hassan. Okay, so that's the right answer. So Hassan and the narrator, and the name of the narrator or the writer is Sudhamurthy. Okay, good, very good, well done. So these are the two people. So in the long questions also we are going to talk about more or less about these people.
ठीक है। सो सारा जो लेसन है इन्हीं दो लोगों के आसपास ही घूम रहा है, एंड वी मस्ट बी अवेयर। सो इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग, सो बजाय रट्टा वगैरह लगाने के, इट विल बी बेटर इफ यू कैन जस्ट कीप मेन पॉइंट्स इन योर माइंड, सो दैट विल हेल्प यू इन राइटिंग द क्वेश्चंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट हसन। पहले जो हसन के बारे में बात करते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट हसन, सो हसन कैरेक्टर स्केच इज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। सभी को पता ही है हसन का कैरेक्टर स्केच भी इंपॉर्टेंट है, नरेटर का कैरेक्टर स्केच भी इंपॉर्टेंट है। और व्हेन वी विल टॉक अबाउट हसन, सो हसन के बारे में वी कैन राइट अ लॉट ऑफ थिंग्स। So we know two stages of Hasan. So one is before and other was after. So before, in the beginning of the lesson, Hasan looked different, and while at the end of the lesson, he looked different. So he had changed. So दोनों टाइप पे पहले कैसा कैसा लगता था हसन और बाद में कैसा लगता था, we'll talk about both. So पहले हसन के अंदर दोनों तरह की क्वालिटीज थी, अच्छी बातें भी थी और बुरी बातें भी थी। So when you write the character sketch, if you look at this way, यदि इस तरीके से देखो कि उसमें जो अच्छी बातें हैं वो भी लिखनी है, बुरी बातें भी लिखनी है, तो then you can write a very long answer. और पॉजिटिव बातें क्या क्या थी? पहले तो चलो स्टूडेंट था, स्टूडेंट होना अच्छी बात है, ऑब्वियसली कॉलेज स्टूडेंट था। स्टूडेंट किस चीज़ का था? MCA क्लास का स्टूडेंट था इन कॉलेज एट बेंगलोर। मतलब ये सारे पॉइंट्स हमें मिलेंगे। वी कैन राइट ऑल दीज थिंग्स। ही वॉज ए स्टूडेंट ऑफ MCA एट ए कॉलेज इन बेंगलोर। और उसके बाद क्या था उसका और पॉजिटिव क्या था? टॉल था, हैंडसम था, गुड लुकिंग था, देखने में अच्छा था वो। बिलोंग टू ए रिच फैमिली, अच्छे अमीर परिवार से बिलोंग करता था। और ब्राइट था, वैसे इंटेलिजेंट था, गुड मेमोरी थी, उसकी मेमोरी शार्प थी। तो ये सारी चीज़ें उसमें अच्छी थी। और ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा था। तो वैसे तो चलो इसमें कोई ऐसा नहीं कि ज़्यादा पॉजिटिव बात है, इकलौता ना भी होता तभी अच्छी बात होनी थी, बट मतलब ही वॉज प्रिविलेज्ड। इसमें ये पता चलता कि अकेला बेटा था, काफ़ी प्यार मिलता था उसको, अकेला होने के कारण पेरेंट्स का काफ़ी अफेक्शनेट था। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। सो यू शुड कीप दीज थिंग्स इन माइंड। सो यदि ये पॉइंट तुम्हारे दिमाग में हो तो यू कैन ईजिली राइट अ लॉन्ग आंसर। ये सारी एक एक लाइन एक एक चीज़ पे लिखो तो 5 लाइन्स तो यही बन जाती। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि क्रैमिंग करने की बजाय यदि ये थोड़ा पॉइंट्स जो हैं इनको ध्यान से देखोगे तो दैट विल बी क्वाइट हेल्पफुल। और अब अगली चीज़ देखें। सो नेगेटिव जो उसमें चीज़ें थी वो क्या क्या थी? तो इरेगुलर थी इसकी अटेंडेंस, रेगुलरली कॉलेज नहीं जाता था। तो ये बात याद रखनी है अपने मन में। केम टू कॉलेज ऑन एग्ज़ाम डेज ओनली। और कॉलेज कब आता था? सिर्फ एग्ज़ाम डेज में कॉलेज आता था, वैसे नहीं जाता था। नॉट ए हार्ड वर्कर नहीं था, मेहनती बच्चा नहीं था, मेहनती स्टूडेंट नहीं था वो। मेड फन ऑफ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, उल्टा जो दूसरे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स थे, मेहनती बच्चे थे, उनका मजाक उड़ाता था, उनको नर्ड्स कहता था। सो उनका मजाक उड़ाता था वो, मतलब खुद तो मेहनत करता नहीं था। एंड गेस्ट एंड प्रिपेयर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओनली। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बस उनको गेस्ट करके बस उन्हीं को तैयार करता था। पूरी पूरी थॉरो जो पढ़ाई है वो नहीं करता था वो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ कर लेता था। और स्पेंट ऑल नाइट लिसनिंग टू म्यूजिक, सारी रात म्यूजिक सुन के बिताता था। सो एज यू कैन सी, अभी तो हमने आधी बात की है, सिर्फ बिफोर वाली बात ही की है, और बिफोर वाली बात में ही इतने पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। सो कम से कम 10-11 पॉइंट्स आ गए हैं। तो वैसे तो वी ओनली हैव टू राइट अबाउट आंसर ऑफ अबाउट 70-80 वर्ड्स, लेस देन 100 वर्ड्स। वैसे तो 100 वर्ड से कम ही लिखना है, और 70-80 वर्ड्स का लिखना है, 8 या 9 लाइन्स काफ़ी है। तो लेकिन ऑलरेडी देखा जाए तो 11 या 12 लाइन्स तो हमें यहाँ पे वैसे ही मिल रही है। सो द ओनली थिंग इज यू नीड टू कीप द पॉइंट्स इन योर माइंड। ठीक है, कि पहले पॉजिटिव चीज़ें अपने दिमाग में ही सोच के लिखो कि जब मैं लिखूंगा यू शुड ट्राई टू मेक मेंटल नोट्स ऑफ एवरी क्वेश्चन। सो जितने भी क्वेश्चन है, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, सो दिस कैन बी यूज्ड फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। बाकी सब्जेक्ट्स में भी इस चीज़ को आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। सो मतलब कोई भी क्वेश्चन है, सो ट्राई टू मेक सम नोट्स आउट ऑफ दैट। तो उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको लिखने की कोशिश करो, मेन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखो, एंड देन यू कैन एलेबोरेट दोज मेन पॉइंट्स। तो ये बड़ा आसान तरीका है। सो ठीक है, जो ये सारी चीज़ें ये बिफोर वाली, अभी तो हमने आधा काम किया, अभी तो हसन और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं बाद में क्या हुआ। सो दिस इज व्हाट ही वाज व्हेन ही वाज इन कॉलेज। जब वो कॉलेज में था तब वो कैसा था? कॉलेज स्टूडेंट था, MCA का स्टूडेंट था, टॉल हैंडसम। उसका हुलिया कैसा था? टॉल था, हैंडसम था, रिच फैमिली थी, गुड मेमोरी थी, ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स था। और नेगेटिव सारी चीज़ें देखी है। अटेंडेंस रेगुलर नहीं थी, कॉलेज सिर्फ एग्जाम डेज वाले दिन जाता था, हार्ड वर्कर नहीं था, हार्ड वर्किंग बच्चों का मजाक उड़ाता था,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे वो गैस करता था, वही तैयार करता था, सारी रात म्यूजिक सुनता था. दीज आर द थिंग्स. And before I proceed, basically I always tell you कि it is always better if you keep your phone in landscape mode. So मेरे हिसाब से जो फ़ोन है मैं पहले भी किक कर बता चुका हूँ, दूसरी तरह रखा करो तो उससे जो स्क्रीन है वो ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी. और उसमें भी कई बार होता है कि बार सेटिंग होती है कि उसमें आप फ़ोन तो ऐसे ही घुमा देते हो बट उसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होती. सो कई बार फ़ोन को मान लो आप ऐसे भी घुमा रहे हो, सो बेसिकली इंस्टेड ऑफ दिस यू शुड होल्ड इट लाइक दिस. और कई बार ऐसे घुमाने पे भी सो जो ओरिएंटेशन है वो वैसी रहती है, तो उसमें उस केस में यू हैव टू चेंज द ओरिएंटेशन लॉक. सो वहाँ पे कई बार ओरिएंटेशन लॉक लगा होता है वहाँ पे, तो उसको आप डिसेबल करते हो तो वो अपने आप सही हो जाता है. सो मतलब यू कैन एडजस्ट द स्क्रीन अकॉर्डिंग टू द टीचर स्क्रीन. कई बार जो टीचर मान लो फ़ोन से करवा रहे हैं तो फिर तो ठीक है, फिर तो टीचर की स्क्रीन ऐसी है तो आप भी ऐसी रख सकते हो. यदि टीचर की स्क्रीन ऐसी है तो यू शुड एडजस्ट अकॉर्डिंगली. So this is one point you should always keep in your mind. So to improve, to enhance your basically learning experience. Okay, so let's move on to the next slide. So I hope this thing is clear to everyone. So if anyone has any doubt up to this point, किसी को यहाँ तक कोई चीज़ नहीं समझ लगी तो बता सकते हो. And if you look at it closely, you can even take a screenshot also. उसको screenshot लेके भी वैसे तो रख सकते हो. I will put it in, try to put it in Google Classroom as well. वैसे तो Google Classroom में भी डालूंगा. तो आप ये जो मेन पॉइंट्स हैं इसका स्क्रीनशॉट रख के भी ले सकते हो अपने फ़ोन पे या ऑन योर डिवाइस. और जब भी उसको रिवाइज करना है जस्ट लुक एट दीज पॉइंट्स. सो इंस्टेड ऑफ कि मतलब क्रैमिंग द आंसर, बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि आंसर को रट्टा लगाने की बजाय इन पॉइंट्स को दिमाग में रखो और ट्राई टू राइट दीज पॉइंट्स. तो इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आंसर लिखने की कोशिश करो. सो दैट विल हेल्प यू. ठीक है. एंड आई विल श्योरली take care कि those students who are writing their original answers, they are writing on their own. So I will try not to deduct marks for small mistakes. So जो बच्चे खुद से लिखने की कोशिश करेंगे अपने आप से बना के, तो थोड़ी बहुत उनकी गलती भी होगी, तो I do not deduct marks for that. तो उसके जो मार्क्स हैं मैं आमतौर पे कम ही काटता हूँ. ज़्यादा गलतियाँ होगी थोड़ी बहुत तो चलो ऑब्वियसली काटे जाएंगे, बट थोड़ी बहुत गलतियाँ जो है आई इग्नोर दैट. तो किसी ने पूरा रट्टा लगा के लिखा हुआ है फिर तो कोई गलती होगी तो ऑफ कोर्स मार्क्स कटने बनते ही बनते हैं फिर तो. सो इज दैट क्लियर? सो व्हाटएवर आई हैव सेड, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो ठीक है, लेट्स प्रोसीड ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. आगे देखते हैं. सो ये तो था बिफोर वाला कि हसन का पहला लाइफ का जो हिस्सा है वो कैसा था. एंड देन वी डिस्कस कि हसन मेट हिज टीचर आफ्टर मेनी ईयर्स. बहुत सालों बाद हसन दोबारा मिला अपने टीचर को. सो व्हेन ही वाज 35 years old. सो ये सारी बातें तो जब वो कॉलेज में पढ़ता था, स्टूडेंट था, अराउंड 20 years के करीब उसकी एज होगी, तब उस समय की बात है. 20, 21, 22. तो 10-15 साल बाद जब वो मिला 35 years का होके, तो तब वो कैसा था वो भी हम देख लें. सो मतलब बाद में उसने क्या किया, मतलब कॉलेज पास होने के बाद उसने क्या किया. सो कॉलेज पास होने के बाद ही कंटिन्यूड हिज बैड हैबिट्स इन लिटिल लाइफ आल्सो. उसकी जो बैड हैबिट्स थी, बुरी आदतें थी, वो बाकी आगे ज़िंदगी में भी चलती रही. उसने अपनी आदतें बदली नहीं कॉलेज से जाने के बाद. वाज इरेगुलर एंड अनपंक्चुअल इन ऑफिस. सो इरेगुलर था वो, अनपंक्चुअल था. ऑफिस में भी वो टाइम पे नहीं पहुंचता था. जैसे कॉलेज में पंक्चुअल नहीं था, उसी तरह वही आदतें ऑफिस में भी जारी रही. बाद में जब जॉब किया उसने, जब उसने काम किया, इवन देयर सेम हैबिट्स कंटिन्यूड. और कोरल एट होम एज वेल एज एट ऑफिस. वहाँ पे वो उसका झगड़ा होता रहता था अपने घर पे भी, और ऑफिस में भी उसका लड़ाई झगड़ा होता रहता था. वॉज नॉट सक्सेसफुल इन हिज प्रोफेशनल कैरियर. अपने प्रोफेशनल करियर में वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ. ज़िंदगी में कोई अपने जॉब में वो सफल नहीं हो पाया. वॉज डूइंग एन ऑर्डनरी जॉब. वो एक ऑर्डनरी सा, सादा सा, छोटा सा काम कर रहा था, सेल्समैन का, सेलिंग एजुकेशनल सीडीज. सो एजुकेशनल सीडीज बेच रहा था काफ़ी सालों बाद भी. तो यही छोटा मोटा काम कर रहा था, कोई ज़्यादा बड़ा काम, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं वो बना. सो और बिकेम ऑप्टिमिस्टिक आफ्टर मीटिंग द नरेटर. लेकिन पॉजिटिव चीज़ एक ही हुई बाद में, एंड में. तो पॉजिटिव चीज़ क्या हुई एंड में कि वो ऑप्टिमिस्टिक, मतलब पॉजिटिव फील करने लगा आफ्टर मीटिंग द नरेटर. जब दोबारा नरेटर से उसकी मुलाकात हुई तो उससे मिलने के बाद एंड में वो ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहा था कि मैं अपने आप को बदलूंगा और अच्छा काम करूंगा, प्रोफेशनली सक्सेसफुल होऊंगा मैं. सो हियर्स वेयर द स्टोरी एक्चुअली एंड्स. तो ये सारे पॉइंट्स भी जैसे अपने 11-12 पॉइंट्स अभी पहले देखे हैं और आगे 6 पॉइंट्स बाद वाले हैं.
तो पहले इफ यू वांट, यदि आप चाहो तो कम से कम 20 लाइंस का आंसर लिख सकते हो। वैसे लिखना तो नहीं है 20 लाइंस का ऑब्वियसली, तो 20 लाइंस का तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 200 300 का हो जाएगा। चाहो तो 3 पेज लिख सकते हो प्रैक्टिस स्केच के, बट ऑल यू नीड टू राइट इज ओनली अराउंड 100 वर्ड्स और लेस। ठीक है, सो मतलब यू कैन, यू कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड, यू कैन कंबाइन द पॉइंट्स, यू कैन जस्ट पिक आउट द मेन पॉइंट्स एंड यू कैन ईजिली राइट आंसर ऑफ 100 वर्ड्स। ठीक है, अभी क्लियर है सभी को यहाँ तक? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? तो किसी को कोई चीज़ नहीं समझ लगी तो यू कैन सिंपली आस्क मी। सो दैट्स गुड, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। चलो आगे चलते हैं फिर। सो ये तो हो गया जो मेन कैरेक्टर है ऑफ कोर्स हसन का, हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम। सो लेसन है ही हसन के नाम पे। सो हसन इज ऑफ कोर्स द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी। और जो दो ही कैरेक्टर्स हैं, दो ही लोग हैं पूरी कहानी में, कोई 10-15 लोग नहीं है। सो द वन कैरेक्टर वाज हसन एंड द अदर इज सुधा मूर्ति। सो सुधा मूर्ति इज द नरेटर, द राइटर ऑफ द लेसन। और सुधा मूर्ति के बारे में बात करें, सुधा मूर्ति की क्या क्या बातें बताई गई हैं। शी वाज अ टीचर एट अ कॉलेज इन बेंगलोर। कॉलेज टीचर थी वो बेंगलोर में। और कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी क्लास पढ़ाती थी? एमसीए स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एमसीए के बच्चों को पढ़ाती थी। और वैसे हालांकि लेसन में ज़्यादा नहीं बताया गया, बट शी इज़ अ सोशल वर्कर एंड फिलेंथ्रोपिस्ट आल्सो। तो सोशल वर्कर, समाज सेवक, और फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब लोगों का उपकार करने वाला, लोगों का भला करने वाला, परोपकारी जिसे कहते हैं हिंदी में। तो परोपकारी, लोगों का भला करने वाली वो लेडी थी। और ट्रीटेड स्टूडेंट्स लाइक हर ओन चिल्ड्रन, बच्चों को, स्टूडेंट्स को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती थी वो, बड़ा प्यार से ट्रीट करती थी। गिव द स्टूडेंट्स मॉरल लेसन्स बिसाइड्स एकेडमिक एजुकेशन, और बच्चों को मॉरल लेसन्स भी देती थी, अच्छे ज़िंदगी जीने के पाठ भी बताती थी। एकेडमिक एजुकेशन के अलावा जो कॉलेज की पढ़ाई है उसके अलावा उनको मॉरल लेसन्स भी, अच्छी बातें भी बताती थी वो। और कैन नॉट टॉलरेट इनडिसिप्लिन, वो इनडिसिप्लिन उसको लेकिन बर्दाश्त नहीं था, उसे अनुशासनहीनता पसंद नहीं थी। एंड द स्टूडेंट्स लव इज़ आवर स्ट्रेंथ, बच्चों का जो प्यार है वही उसकी उनकी ताकत है। सो बीइंग टीचर, तो बच्चे उनको प्यार करते हैं और बच्चों का प्यार ही उनकी ताकत है। एंड स्टूडेंट्स रेसिप्रोकेट देयर लव बाय इनवाइटिंग हर फॉर सोशल फंक्शंस, और बच्चे अपना प्यार जताते हैं उनको जो सोशल फंक्शंस होते हैं, घर के हो उनके फंक्शन होते हैं, फैमिली फंक्शंस होते हैं। तो कोई मैरिज है या कोई हाउस वार्मिंग सेरेमनी है कोई, ठीक है, कि कोई भी इस तरह के घर के फंक्शन जो होते हैं तो बच्चे बुलाते हैं। इस तरीके से अपना स्टूडेंट्स उनको प्यार जताते हैं उनके प्रति। और शी ट्राई टू मैंड हसन हैबिट्स, और उसने हसन की हैबिट्स को सुधारने की कोशिश की, हसन की आदतों को सुधारने की कोशिश की। गेव हसन ए न्यू होप व्हेन ही मेट हर आफ्टर मेनी ईयर्स, और हसन को एक नई उम्मीद की किरण दी जब हसन कई सालों बाद उनको मिला, तो उसे एक नई उम्मीद दी, उसे दोबारा ऑप्टिमिस्टिक महसूस करवाया उन्होंने। तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं सुधा मूर्ति की। ठीक है, सो पहले तो ये है कि पढ़ाती, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती थी और कहाँ पे वो पढ़ाती थी। सोशल वर्कर भी थी वो, और बच्चों को, अपने बच्चों की तरह स्टूडेंट्स को ट्रीट करती थी, मॉरल लेसन्स भी देती थी, ये सारी जो जो अच्छी अच्छी बातें हैं। लेकिन इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं था। ठीक है, और बच्चों का प्यार उनकी ताकत है, बच्चे अपना प्यार उनको जताते हैं, उनको इनवाइट करते हैं अपने घर के फंक्शंस पे। और उसके अलावा और उन्होंने क्या किया, हसन के साथ रिलेटेड जो दो बातें हैं वो भी बताई। हसन के साथ रिलेटेड बातें क्या है कि हसन की आदतों को उन्होंने सुधारने की कोशिश की। ठीक है, और हसन को वैसे हमने यहाँ पे नहीं लिखा कि उसकी अटेंडेंस भी, हालांकि पहले वो सख्त होती थी लेकिन उसकी अटेंडेंस पूरी कर देती थी, उसको माफ़ कर देती थी हसन को। तो ये भी देयर इज़ अनदर थिंग। और एंड में जब कई सालों बाद भी वो मिली तो उसने हसन को एक नई उम्मीद उन्होंने दी, एक मन में उसके विश्वास जगाया, उम्मीद जगाई। तो दिस इज़ व्हाट सुधा मूर्ति's कैरेक्टर स्केच लुक्स लाइक। ठीक है, अभी क्लियर है यहाँ तक सबको? कोई डाउट तो नहीं है? तो काफ़ी सारी लाइंस हमने यहाँ पे भी लिखी हैं, कम से कम 10 लाइंस यहाँ पे लिखी हैं हमने। सो यू कैन इजीली राइट दीज 10 लाइंस और इवन 11 लाइंस। ठीक है ना? सो यहाँ पे भी आप चाहो तो वैसे तो बहुत बड़ा आंसर भी लिख सकते हो, बट अगेन वी ओनली हैव टू राइट आंसर ऑफ less than 100 words. ठीक है, so before we proceed further, so let us have a quiz as well. So साथ में एक quiz भी कर लेते हैं so that we may know if you have understood the whole thing or not. और quiz के लिए let me share a code with you, just a second. So before I begin,
So are you all ready for the quiz? So, okay. So 1 minute before I start. Okay, so again, I'm going to share my screen with you and just be ready. Very shortly, I will be sharing the link with you. All you need to do is click on that link. बस link पे click करना है. अभी थोड़ी देर में link दे रहा हूँ, 1 सेकंड में. Okay, basically I will switch off the timer. So इसमें कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है. You can take your time. So normally जब हम quiz करते हैं, those who answer quickly get extra marks. But today there will be no extra marks for being quick. So you can take your time. आराम से आंसर देना. आंसर सही गलत के नंबर हैं, जल्दी देने के नंबर नहीं है. So you not need to be very quick. ज़्यादा जल्दी तेज़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है खास. So you can take your time. You can think, and then you can answer. Is that clear? Everyone has understood what I said? Okay, so this is the code. I'm going to paste it in the chat window. So you can simply click on that code, and then enter your name. So code पे click करना है. ये जो chat window में है, so you can go out of Zoom. Zoom से बाहर जा सकते हो, आप quiz में जा सकते हो जब तक quiz चलेगी. So you can stay out of Zoom. और जब quiz stop हो जाएगी तो Zoom के अंदर ऐसे ही वापस आ जाना है. So you can just I hope my voice is clearly audible to all of you. You can all hear my voice. So 20 students have already joined. I'm waiting for a few more. So be very quick, Shabash. Okay, so I hope everyone is able to join. So 45 students have joined. That is really good. Waiting for a few more. थोड़े और बाकी बच्चों को wait कर लेते हैं. Total there are I think 65 students. So 47 have already joined. Really good. Okay, so waiting for a few more. बाकी भी जल्दी कर लो बड़े join. Okay, let us see. So 53 students have joined. So I wait for half a minute more. आधा मिनट और wait करते हैं. 56 have joined. Okay, that's good. Okay, a few seconds more before we begin. Okay then, so let's start then. So most of you have already joined. 57 have joined. Okay, shall we wait for a few more seconds? Okay then, so here we begin. So best of luck to all of you, and listen and read the questions very, very carefully, and no need to rush. You can just take your time. Okay, so 38, 43 students have answered. Okay, very good. So 10 students haven't still answered. So basically I'm waiting for them. Okay, so most of you have answered the last 5 seconds. So only 3 or 4 students are remaining. Okay, so I'm ending the question here. Okay, so let us quickly see who is there on the leaderboard. You can also see your position on your own screen also. So it is 12BG10 and then Karan. So basically always type your full name also. So yesterday also I told you that when you join the class you can change your name. So कई वहाँ पे बच्चों ने जो है उनका रोल नंबर तो शो हो रहा है बट नेम जो है वो पूरा शो नहीं हो रहा. So make sure उसमें आप चेंज कर लो. एक बार दोबारा मैं बाद में बता भी दूंगा. So okay, very good, very well done. Everyone did really well. So let us move on to the next question.
you can see your position on your own phone as well. वहाँ पे भी ऊपर position आती है साइड पे कितने student हैं और आपकी कितनी position है. So get ready for the next question. Okay, here's the next question. The narrator was a dash at a college in Bangalore. So what she was. So as I said, you can take your time. No need to rush. आराम से देख के आंसर दो. ज़्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है. Okay, 49 students have answered. Still waiting for 15 students. 15 students के लिए अभी वेट कर रहा हूँ मैं. Okay. Okay then, so let's proceed. So basically last 5 seconds. 1, 2, 3, 4 and 5. So let us see what the leaderboard looks like. So on the leaderboard we have 12th science, roll number 10, first Karan, Disha, Neha. So these are the students who are in top 4. Okay, very well done, shabash, keep it up. So here's the next question. So get ready for the next question. So which of these statements, so there can be more than one statements true, so make sure एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं. So जितनी भी statements true है, you have to tick all the true statements. सिर्फ एक पे टिक नहीं करना, एक से ज़्यादा यदि है तो एक से ज़्यादा भी टिक की जा सकती हैं. So make sure you tick all the statements that are true. So जो भी statement true है सभी पे टिक लगानी है. So just read carefully. So we have just discussed कौन-कौन से main points थे हसन के. So according to that, you can easily find out so which statement is true and which is false. So waiting for some students. So 42, 43 students have answered. 44 have answered. Waiting for another 10 or 15 students. So last 10 seconds. Yes, be quick, shabash. So still around 10 students haven't answered, so I'm waiting for those 10 to 12 students. Okay, so last 5 seconds. So make sure you answer in these 5 seconds. Okay, that's good. So let us proceed. And let us see what the leaderboard looks like now. The new leaderboard dekh lete hain. So again, now Anmol Puri is at top, Grace, Gagan, Tushar, Shruti. So these are the top 5 right now. So many of you got it right. Okay, let us move on to next question. So this is question number 4. So again, which of these statements are true about narrator? So again, there can be more than one statement which can be true. So make sure you tick all the statements that are true. So जो statements true है, सभी पे जो है उसको टिक लगानी है हमने. शाबाश. So that's good. Okay, keep it up. So more than half the students have answered. A few haven't. Make sure you answer it quickly. So last 10 seconds. Last 10 seconds remaining. Last 5 seconds remaining now. So be quick. Still 15 students haven't answered. I'm waiting for them. So I will give you a few more seconds. So I'm ending this in 3, 2, and 1. So let us see how many of you got it right. Okay, in the leaderboard we have Anmol, Grace, Gagan, Tushar, and Shruti. So these are top 5, and others are also doing well. So बाकी भी students अपनी position देख सकते हैं. वहाँ पे ऊपर लिखा होगा नंबर की आपका नंबर कितना है out of 66. You can see your own position, and so you can quickly change the position. Make sure you answer all the questions right. So here's the last question of this quiz. We will have more quizzes also, but this is the last question of this quiz. So what did Hassan call the hardworking students of his class? I gave you that word. So those who listened carefully,
आई स्पोक दैट वर्ड, मैंने बोला था, वर्ड बोला अभी जब वी वर टॉकिंग अबाउट हसन, हम बात कर रहे थे कि हसन हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स का मजाक उड़ाता था. सो व्हाट वाज द वर्ड दैट ही यूज्ड फॉर द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स? So last 5 seconds now. Make sure still 15 students haven't answered. I'm waiting for them. So last 3 seconds. I'm ending this in 3, 2, and 1. So here's how the final leaderboard looks like. So let me see what is the final position. So you can come back to Zoom and you can see yourself Anmol, Grace, Gagan, Tushar, Shruti. So again, these 5 students are at top. And so you can come back to Zoom and you can see the detailed report of the quiz. quiz की पूरी रिपोर्ट वहाँ पे भी आगे देख सकते हो Zoom के अंदर आके. So यहाँ पे आप देख सकते हो. So first is Gagandeep, second is Parminder actually, and third is Ekaj. Okay, very good, well done. So the positions are finally, maybe there has been some change in position. पहले वहाँ पे कुछ और शो कर रहा था. So over here एक बार दोबारा पोजीशन देख लेते हैं. पोजीशन चेंज होगी लास्ट क्वेश्चन के बाद, मेरे ख्याल से इसमें चेंजेस भी आई हैं कुछ ना कुछ. और बिकॉज द थिंग इज कि काफ़ी स्टूडेंट्स के पूरे राइट है, वैसे तो सारे ही फर्स्ट हैं. ये जो लेट मी ऑल दीज स्टूडेंट्स आर ऑन रैंक 1. वैसे तो ये सारे रैंक 1 पे हैं. गगनदीप, परमिंदर, एकज, अनमोल, गगन, ग्रेस, हरमन, करणदीप, राजविंदर, श्रुति, मनप्रीत, तुषार. सो दीज स्टूडेंट्स हैड ऑल देयर आंसर्स राइट. ये जो बच्चे हैं इनके सभी आंसर्स राइट थे. सो पॉइंट्स बराबर हैं क्योंकि टाइम का हमने वैसे रखा नहीं था. सो टाइम की बात नहीं है, इसलिए पॉइंट्स सभी के बराबर है. और जो सेकंड है, सेकंड पोजीशन पे जिनका एक गलत हुआ है, दिशा, गुरलीन, जैसिका, क्रिस्टीना, सिमरनजीत, नवजोत, कृष्ण गोपाल, वंशिका, हरमनदीप, जसविंदर, जैस्मीन, जैक्सन, चाहत और नीरज, आस्था, समिंदरजीत, रितु, दलजीत. सो दी स्टूडेंट्स आर एट सेकेंड रैंक. इनका एक गलत हुआ है, बाकियों के 2 से ज़्यादा गलत हुए हैं. सो others should focus more properly. ठीक है. So you can basically also play this quiz later. So I will try to put this quiz in the Google Classroom also. तो वहाँ पे जिनके गलत हुए हैं, so they can once again check their answers. वहाँ पे जाके दोबारा अपने answers देख सकते हैं. So I hope it is clear to everyone. So well done. Okay, all of you did really well. So let us proceed. So let us move on. So पहला हमने topic कर लिया है. We have finished the first lesson, that was Hassan's attendance problem, and now we move on to the next poem. So her lesson, her poem के बाद we'll have a small quiz. So be attentive. So ध्यान रखना है सभी ने, और ताकि ठीक है कि अब जो अगली poem करेंगे, poem के main points करेंगे, and then we'll have a quiz on that as well. So अगली जो poem है, next is Prayer of the Woods. और over here basically, so let us see इसके जो मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं. प्रेयर ऑफ द वुड्स में हमने कौन कौन सी बातें याद रखनी है. प्रेयर ऑफ द वुड्स पोएम सभी ने की थी. तो यदि किसी ने नहीं भी की, यू कैन वॉच द वीडियोस आल्सो. सभी पोएम के सभी लेसन के वैसे तो वीडियोस भी बने हुए हैं. आई पुट देम इन गूगल क्लासरूम में डाले हुए हैं. तो इफ़ यू हैव मिस्ड एनी क्लास, यू कैन स्टिल वॉच दोज वीडियोज़. यदि क्लास कोई मिस हो भी गई है तो वीडियोज़ देख सकते हो दोबारा. और सबसे पहली बात यह है, इस पोएम के अंदर ये जो इसका जो पोएट का नाम है, 2 ही पोएम्स हैं, 2 पोएट के नाम तो जरूर याद रखो. So this poem has been written by an anonymous poet. So anonymous, अज्ञात, अनजान व्यक्ति द्वारा ये पोएम लिखी गई है. और इसमें जो वुड्स प्लीड अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन, सो इसमें वुड्स को बोलता दिखाया गया है. वुड्स को एज स्पीकर शो किया गया है कि जैसे वुड्स जो जंगल है वो बातें कर रहे हैं. तो जंगल क्या बातें कर रहे हैं, वुड्स क्या बातें कर रहे हैं. दे आर प्लीडिंग अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन. सो डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ, जंगलों के काटने के खिलाफ वो विनती कर रहे हैं. वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जंगलों को ना काटा जाए. और इसमें जो सेंट्रल आइडिया में भी हमने मेन बातें लिखनी है, क्वेश्चंस में भी लिखनी है कि वुड से हमें मिलता क्या क्या है. सो बहुत सारी चीज़ें हमें वुड से मिलती हैं. फ्यूल, शेड एंड फ्रूट्स. सो फ्यूल मिलता है. सो पहला जो पैराग्राफ है पूरी पोएम में, सो फर्स्ट पैराग्राफ में उसने 3 चीज़ों की बात की है. कौन कौन सी 3 चीज़ों की बात की है कि वुड्स हमें फ्यूल भी देते हैं, ईंधन देते हैं जलाने के लिए,
शेड देते हैं, छांव देते हैं गर्मी में, और फ्रूट्स देते हैं, फल मिलते हैं जिससे हम अपनी प्यास बुझा सकते हैं, अपनी भूख मिटा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं उसमें। एंड देन उसके बाद अगले पैरे में उसने क्या बात की है, नेक्स्ट पैराग्राफ में उसने बात की है कि टूल्स यूज इन डेली लाइफ आर मेड ऑफ वुड, की जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को, वो ज़्यादातर जो टूल्स हैं वो वुड से बने होते हैं, लकड़ी से बने होते हैं। जैसे उसमें बातें की हैं हो, ठीक है, डोर, बेड और नंबर ऑफ अदर थिंग्स आल्सो, और भी कई चीज़ें बताई हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो वुड से बनती हैं, ये बताया गया पोइम के अंदर। और उसके अगले पैराग्राफ में, अगली लाइन्स में बताया गया है कि दे कंपनी अस फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ये जो वुड्स हैं वो बर्थ से लेके, जन्म से लेके मौत तक हमारे साथ चलती हैं। क्रेडल टू कॉफिन वहाँ पे लिखा है, क्रेडल मतलब जन्म, झूला बच्चे का जो कि बर्थ को डिनोट करता है, और कॉफिन मतलब जो कफन है, ठीक है, ताबूत है जिसमें लाश रखी जाती है, अर्थी है जब। सो जो कॉफिन दैट डिनोट्स डेथ, क्रेडल टू कॉफिन मीन्स बर्थ टू डेथ। सो जन्म से लेके, बर्थ से लेके दे कंपनी अस, हमारा साथ देते हैं अप टू डेथ। और दे अराउज फीलिंग्स ऑफ काइंडनेस एंड ब्यूटी इन मैन्स हार्ट, और हम इंसान के दिल में काइंडनेस और ब्यूटी की भावना भरते हैं, दयालुता की और खूबसूरती की भावना फिल करते हैं हमारे मन के अंदर। सो दीज आर द थिंग्स। एंड फाइनली दे प्रे, और आखिर में वो प्रे कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रेयर? दे आर प्रेइंग नॉट टू हार्म देम, तो वो यही कह रहे हैं कि हमें हार्म ना करो, हमें नुकसान मत पहुंचाओ। सो दैट्स व्हाट द पोएम इज। इट्स अ वेरी सिंपल पोएम, बड़ी सिंपल पोएम है, बड़ी अच्छी पोएम है। सो रिटन बाय एन एनोनिमस राइटर, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा राइट की गई है पोएम। और उसमें बातें यही कही हैं, राइटर का नाम तो जरूर पता होना चाहिए, पोएट का नाम पता होना चाहिए हमें, पोएट एनोनिमस है। और मेन आइडिया क्या है? आइडिया है डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ प्लीड की जा रही है, डिफॉरेस्टेशन नहीं होनी चाहिए, पेड़ नहीं काटने चाहिए। और यहाँ पे ये सारे फायदे गिनाए हैं क्यों नहीं काटनी चाहिए। वो बता रहे हैं कि पेड़ जैसे हमसे बातें कर रहे हैं, पेड़ कह रहे हैं कि हम ये सारी चीज़ें आप लोगों को देते हैं, इंसान को देते हैं। कौन कौन सी चीज़ें देते हैं? फ्यूल, शेड, फ्रूट्स, और बहुत सारे टूल्स। टूल्स में हमने अलग अलग बातें की हैं, बेड हो, ठीक है, डोर एंड प्लैंक एंड नंबर ऑफ अदर थिंग्स, वो सारी चीज़ें वुड से बनती है। और क्रैडल भी वुड से बनता है, कॉफिन भी, मतलब बर्थ से लेकर डेथ तक वुड साथ देती हैं। और काइंडनेस, ब्यूटी, हमारे दिल में अंदर फीलिंग बढ़ती है काइंडनेस, ब्यूटी की। और प्रे करते हैं, क्या प्रे करते हैं? कि हम उनको हार्म ना करें। सो इफ़ यू कैन राइट दीज 6 or 7 पॉइंट्स, so that will simply transform into 6 or 7 lines, 6-7 लाइन्स बन जाएंगी। so that is around 70 to 80 words, so that's all that we need। so इसी से पूरा सेंट्रल आइडिया बन जाता है। so अपने दिमाग में यही रखना है, अलग अलग पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें बताई हैं, और उसके हिसाब से यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट? so you may let me know, you can raise your hands if you have any questions at any stage. You can ask me by raising your hand. Okay, so I hope everything is good. So let us move on to the next quiz then. So again we are starting a quiz based on this poem. So इस poem के ऊपर based हम quiz करने जा रहे हैं. So just be ready. So best of luck to all of you once again. And once again there won't be any time limit, so you can take your time. So no extra marks for answering quickly. So इसलिए कोई गलती ना करो, इसको मतलब जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है. So okay, again I'm going to share my screen, and we are going to start the next quiz in just a few seconds. I'm going to share another link with you. So just a second. Okay, so let's begin. And here's the code. Directly copy the code in the chat window. So this is the new link. Just make sure you select the new link. And game code is 261910, but you won't need the game code if you are simply clicking on the link. Then you won't need the game code. So okay, be quick. Yes, 10, 11, 15, 17, 20, 25 students have already entered. Waiting for others. 32. That's good. 33. 40. 44. Okay, that's good. 47 have entered. 48, 50, 49, sorry, 50 now. That's good.
So waiting for 30 seconds more. I'll wait for another 30 seconds. Around 10 students are remaining. So waiting for the remaining 10. The students again 54 students have already entered. So let us quickly see. Okay, let's begin then. So most of you have already entered. Okay, so here we start. Just a second. So just be ready. 3, 2, and 1. Here's the question. Yes, very good. So most of you are answering quickly. That's good. Okay. Okay, so last 5 seconds. 1, 2, 3, 4, and okay, let me end it with 3, 2, and 1. So here's what the leaderboard looks like. So let me quickly take the names from leaderboard. So it is okay. Parminder, Gurman, Jasmeet, Simranjeet, Anjali, Harman. So I'm taking the just 4 or 5 names, but I'm sure most of you got it right. So 54 students got the answer right. 54 students had birth. So cradle means birth. Only 3 students got it wrong. Just make sure you get it right next time. Okay, good. Let's move on to the next question. Okay, good luck. The woods give us fuel, dash, and fruits. So we had seen that line over there. So this line was there. I hope most of you will get it right. That's good. Okay, 54 students have answered. So last 5 seconds. So I'm ending this in 3, 2, and 1. So here's what the score looks like. So here's the leaderboard in front of me. Parminder, Gurmandeep, Jasmeet, Simranjeet, Harman, Manpreet. So these are a top few, and 51 of you got it right. The answer was shade, fuel, shade, and fruits. So 51 students answered correctly. Very good. Let us see what the next question is. Question number 3. Just be quick. Okay, here's the question. What is the prayer of the woods? What are they asking us not to do? Okay, really good. 50 students, 49 have answered. 51. Waiting for last 5 or 6 students. So just be quick. So I'm going to end this one in a few seconds. So just a second. So last 5 seconds. Okay, so I'm ending this in 3, 2, and 1. Okay, let us see the leaderboard once again. You can see your position also on your own screen. Gurmandeep, Jasmeet, Simranjeet, Harman, Manpreet, and Mole. So these are a few names at the top. There must be many more also. So 52 students got it right. So the answer was not to harm them. So not to, you have to look at the word not to. So not to harm them. कि उनका नुकसान ना करें, उनको harm ना करें. So that was the question. So let us see question number 4. So here's question number 4. Be ready. Who's the poet of the poem Prayer of the Woods? That is a very simple question. I hope you will get it right, but make sure the spellings are written correctly. So 37 students have answered. That's good. Okay, waiting for a few more. Okay, 15 students remaining. Okay, so the last 10 seconds.
So last 5 seconds. So I'm ending this in 3, 2, and 1. So here's what the leaderboard is now. So now basically we have Gurmandeep, Jasmeet, Simranjeet, Harman, Manpreet, Disha. So 42 students gave correct response. 14 students got it wrong. So there might be some spelling mistakes or something. So anonymous, ANONYMOUS. So that was the right answer. Good, really good. And this is the last question of this poem. So just make sure you get it right. So you have to tick on all the things that are made of wood. So there can be more than one things which are made of wood. So you just have to tick all the things, not just one. Okay, good. Very good. So around 10 students remaining. So wait, I'll wait for 5 seconds more. Just last 5 seconds. So I'm going to end it in the next few seconds. So let's end it with 3, 2, and 1. So here's the final leaderboard. So you can come back to Zoom and you can see the leaderboard yourself. So here it is, Simranjeet, Harman, Disha, and there are a lot more. So basically, there are many students must have got the first position. There are more than a few. So you can come in the Zoom and you can see the screen over here. You can see the complete list. So it shows Disha, Harman, and Simranjeet. Basically, as I said, there can be more than one students who can be at top, so that it is picked randomly sometimes. ठीक है, सो नंबर तो सभी के बराबर है, थोड़ा बहुत चलो फिर भी कहीं ना कहीं टाइम का भी फर्क पड़ जाता है, पर टाइम का इतनी बात नहीं है, करेक्ट होना जरूरी है. सो कंग्रेचुलेशंस टू द विनर्स. सो वी कैन सी दिशा, हरमन, सिमरनजीत, जैस्मीन, गुरलीन, एकज, गुरजीत, हरमनदीप, आस्था, Rajvinder, Jasdeep, Rupali, Jessica. These students have got all their questions right. So यहाँ तक जितने बच्चे हैं इनके सारे क्वेश्चन सही हैं, और बाकियों के साहिल, सो 12th साइंस, तुषार. सो ये बेटा यू कैन चेंज योर नेम. बेटा यहाँ पे 12 BG10 कोड नज़र आ रहा है. सो उसमें यू कैन गो टू योर प्रोफाइल एंड यू कैन चेंज योर नेम. सो जो फर्स्ट नेम है अपना पूरा नाम लिख सकते हो चाहो तो. सो फर्स्ट नेम में पूरा नाम लिख देना वहाँ पे. So it's good that you have actually registered. It is really commendable. So then Tushar, Neeraj, Himanshu, Daljit, Shruti, Noor, Gagan, Jackson, Jasmeet, Simran, Gagandeep, Manpreet, Grace, Manjoot, Karandeep, Kashish, Anjali, Gurman, Saminder, Robin, Anmol, Samriti. So up to this point, you have got 2 wrong only. So got 1 wrong only. So say at second rank. बाकी सभी के से ज़्यादा गलत हुए हैं, तो बाकियों को जरूर एक बार दोबारा क्विज देखनी चाहिए. So you can play it later. दोबारा भी play कर सकते हो उसको. And let's quickly move on to the next point. So I hope this point is clear up to this point. So just a second. So please wait for a few seconds. So we'll start. Okay, so let's move on to the next point. So I hope all of you are aware what the next poem is. ये तो पता ही होगा सभी को, no doubt about that. Yes, Sanjana. So what is the next poem that we are going to do? Sanjana, are you there? बेटा इसका नाम लो, अनम्यूट किया करो और बताया करो. Whatever I ask, so basically let me know if you are all attentive. बीच में पता लगता रहे कि सारे attentive भी हैं या नहीं है. Yes, Pratham, are you aware which is the next poem? The name of the next poem?
बेटे मेरी आवाज आ रही है सभी को? ओके, दैट्स गुड। तो एक दो स्टूडेंट्स का मैंने नाम लिया, दे हैवंट अनम्यूटेड देमसेल्व्स, सो दैट इज रियली नॉट गुड। सो इट मींस या तो पता नहीं है। यस सिमरनजीत, Sir, good morning. गुड मॉर्निंग बेटे। Sir, on friendship, next point. Okay, so very good, thank you. So here we go, we are going to start the discussion on the next point. So once again I'll share my screen with you and let's begin. So here it is. So the next poem is on friendship and it is written by Khalil Gibran, right? So Khalil Gibran is the writer. Make sure you remember the name of the poets. So अभी तो दो ही poems किए हैं वैसे तो दो ही नाम है, Anonymous and Khalil Gibran, and taken from the book The Prophet. So ये जो poem है एक book में से ली गई है जिसका नाम है The Prophet. The Prophet नाम की book है और prophet का मतलब भी मैंने बताया था, उसकी जो basic story है वो भी बताई थी. So prophet means कोई पीर, पैगंबर, संत. तो उसका नाम ही book का ये है और उसमें मैंने बताया था कि so let me ask you मैंने क्या बताया था इसके बारे में. Yes Manpreet, what did I tell about this book? What did I tell about The Prophet? Are you there बेटे? सर गुड मॉर्निंग। Yes, good morning. सर आपने बताया था कि जो ये फ्रेंडशिप वाली पोइम है वो बुक द प्रॉफिट में से ली गई है। So what else did I tell you? I gave a bit of introduction also. इसके book की थोड़ी introduction भी दी थी मैंने तब जब poem पढ़ाई थी क्लास में. Okay, how many of yeah, go on. How many of you remember? So what was the introduction that I gave? I gave you a brief story. Okay, so one or two students have raised their hands. That's really good. Yes, Rajvinder. Sir, good morning. Yeah, good morning बेटे. Sir, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇਹਦਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਇਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦੇ ਆ. That's good. Okay, very good. So that's what I told basically. So I told कि the pattern of the book is like this कि there is a prophet. So एक prophet है. So prophet मतलब वही कोई संत है, कोई पहुंचे हुए व्यक्ति हैं. I gave you the example of बाबा मुराद शाह. जैसे बाबा मुराद शाह लोग बहुत मानते हैं, ठीक है ना. So someone similar to that. So इसी तरह के मान लो कोई महापुरुष हैं कोई, and the people are gathered around. लोग वहाँ पे उनके आसपास बैठे हुए हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे ज्ञान की चर्चा हो रही है. They are asking questions to him and the prophet is talking about different subjects. So अलग-अलग विषयों पे लोग पूछ रहे हैं, उनके जो श्रद्धालु हैं, जो पिलग्रिम्स हैं, वो अलग-अलग चीज़ों पे उनसे पूछ रहे हैं कि आप इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ. And the prophet is telling about all the various topics and there are different poems for each topic. So अलग-अलग टॉपिक के बारे में, जैसे वो कहते हैं हमें मैरिज के बारे में बताओ, तो मैरिज के ऊपर उन्होंने पूरी पोइम बनाई है. दे से टेल अस अबाउट द फैमिली. सो फैमिली के बारे में पोइम बनाई है. सो दे से टेल अस अबाउट लाइफ, अबाउट डेथ. सो इसी तरह अलग-अलग तरह की poems हैं ऑन लाइफ, ऑन डेथ, ऑन फैमिली, ऑन मैरिज. सिमिलरली समबडी आस्क्स, तो बीच में एक जो है अ यूथ गेट्स अप एंड आस्क्स. तो एक यंग मैन जो है कोई पूछता है उनसे कि टेल अस अबाउट फ्रेंडशिप एंड देन दिस पोएम कम्स ऑन फ्रेंडशिप. सो वो कहते हैं अच्छा जैसे बाकी विषयों के ऊपर बताया, अब दोस्ती के बारे में बताता हूँ. सो दैट इज व्हाट द पोएम इज. सो दैट इज द इंट्रोडक्शन दैट आई गिव यू अर्लियर एज वेल. सो लेट्स सी व्हाट द पोएट सेज अबाउट फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप के बारे में क्या क्या बातें करते हैं. ही टॉक्स अबाउट द वर्च्यूज ऑफ हैविंग फ्रेंड्स. सो इस पोएम में जो वर्च्यूज हैं, जो गुण हैं, जो पॉजिटिव फायदे हैं दोस्तों के, तो उसके बारे में बात की गई है. दोस्त होने क्यों जरूरी हैं, दोस्त क्या करते हैं, दोस्ती क्या है, तो इसके बारे में पोएम में बताया गया है. एंड द पोएट सेज दैट द फ्रेंड्स आर गिफ्ट ऑफ गॉड. सो फ्रेंड्स एक गिफ्ट है, एक वरदान है, परमात्मा द्वारा दिया गया वरदान है हमें. और ही सेज वी गिव लव एंड रिसीव ग्रेटिट्यूड. हम लव देते हैं, दोस्त को प्यार देते हैं और बदले में ग्रेटिट्यूड प्राप्त करते हैं, शुक्रिया प्राप्त करते हैं. दोस्त मन ही मन
हमारा शुक्रगुजार होता है। हालांकि थैंक यू बोला नहीं जाता, बोलने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मन ही मन जब हम दोस्त को प्यार देते हैं तो उसके साथ अफेक्शन हो करते हैं तो वो भी हमें ग्रेटफुल होता है, वो भी शुक्रगुजार होता है मन ही मन। सो लव देते हैं, ग्रेटिट्यूड मिलता है। एंड देन और क्या क्या पॉइंट्स इसमें हमने किए कि फ्रेंड्स सपोर्ट अस, जो दोस्त हैं हमें सपोर्ट करते हैं। गिव वार्मथ, एक तरह से वार्म देते हैं, गर्मी देते हैं इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, मुश्किल समय में। तो मुश्किल समय को ठंड के साथ कंपेयर किया गया, मुश्किल समय की ठंड में दोस्त गर्मी का एहसास देते हैं। तो ये बताया गया है इसमें। सो नो फियर ऑफ यस और नो टू एग्री और डिसएग्री, कोई हमें फियर नहीं होता दोस्त के साथ हाँ या ना कहने में, कोई संकोच नहीं होता, कोई डर नहीं होता मन में। चाहे एग्री करें उसकी बात से या डिसएग्री करें, दोस्ती पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं कि दोस्त ने कहा चलो ये करते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना, ये गलत है, तो दोस्त नाराज़ हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने यही कहा जो सच्चा दोस्त है उसके आगे आप फेयर नहीं करते हो, डरते नहीं हो, ना यस कहने से डरते हो, ना नो कहने से डरते हो, ना एग्री करने से डरते हो, ना डिसएग्री करने से डरते हो। ठीक है, उसकी बात अच्छी लगे तो मानते हो, नहीं अच्छी लगे ना मानो। तो दोस्त को कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता दोस्ती पे। सो नीड नॉट प्रोक्लेम अवर लव, और हमें अपना लव प्रोक्लेम करने की, मतलब बोल के जताने की, बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि उसको बताएंगे बोल के तो तभी वो समझेगा, वो मन की बात समझता है। फ्रेंड कैन रीड अवर थॉट्स, हमारे मन के विचार दोस्त समझ लेता है। एंड फीलिंग्स, हमारी फीलिंग्स भी वो समझ लेता है। और वी शेयर आवर जॉयज एंड सॉरोज, अपने दोस्त के साथ हम अपने दुख और सुख बांटते हैं। सो दीज आर द थिंग्स। वैसे तो फ्रेंडशिप पे बहुत सारी लाइंस लिखी जा सकती हैं, बट द थिंग इज वी हैव टू स्टिक टू व्हाट इज सेड इन द पोएम। सो ऐसा ना हो, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि ठीक है ना, अपने पास से बना के पता नहीं क्या क्या कई बार लिख देते हैं। सो दैट इज नॉट द राइट वे। सो वी हैव टू स्टिक टू व्हाट द पोएम इज अबाउट। तो पोएम में जो जो बातें कही गई हैं, सो वी हैव टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स ओनली। ये नहीं कि कुछ भी जनरल सा लिख दो, सो दैट वोंट डू। सो यही बातें मीन्स में बताई गई। सो यही बात है, पहले तो पोएट का नाम बताना है, किताब का नाम बता सकते हो, फिर पोएम में बातें क्या क्या हैं, वर्च्यूज ऑफ हैविंग फ्रेंड्स, क्या क्या वर्च्यूज हैं, क्या क्या गुण है दोस्तों होने के, और गिफ्ट ऑफ गॉड है ये बताएंगे, दोस्त को लव देते हैं, ग्रेटिट्यूड मिलता है ये बताएंगे, दोस्त हमें सपोर्ट करते हैं डिफिकल्ट टाइम में, वार्मथ देते हैं ये बताएंगे, यस और नो कहने से डरने की जरूरत नहीं है, सच्चा दोस्त जो समझता है। और हमें अपना लव बोल के प्रोक्लेम करने की जरूरत नहीं है, दोस्त मन की बात समझता है। हम अपना जॉयज और सॉरोज, दुख सुख दोस्त के साथ बांट सकते हैं। दीज आर द थिंग्स। ठीक है, उसमें और भी कई चीज़ें थी जिसमें जैसे मैं बताया था कि दूर से, जब हम दोस्त से दूर होते हैं तो उसके गुण हमें और ज़्यादा पता चलते हैं। जैसे पहाड़ को दूर से देखो तो ज़्यादा क्लियर नज़र आता है। देयर आर अदर थिंग्स एज वेल, बट दीज आर द मेन पॉइंट्स। इफ यू कैन सिंपली राइट दीज 7 or 8 थिंग्स, द सेंट्रल आइडिया विल बी मोर देन कंप्लीटेड। काफ़ी जितना चाहिए उससे ज़्यादा ही हो जाएगा। जस्ट ट्राई टू कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड। सो यही बात है, कोई भी लेसन है, कोई भी पॉइंट्स है, so उनके जो जैसे मैंने बताया, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, चाहे तो वैसे बाद में गूगल क्लासरूम में भी देख सकते हो। एंड ट्राई टू राइट योर ओन आंसर्स। उसको रट्टा ना लगाओ, उसको समझ के उसे प्रॉपरली लिखने की कोशिश करो। ओके, सो I hope you are ready for the next quiz. So we are again, for every topic we are going to have a small quiz. So we are going to move ahead, shall we? Okay then. So just be ready for the next link. I'm going to share the quiz link with you very soon. So just be ready. So let us see what we have over here. So this is the next quiz on friendship. And we are going to start it in a few seconds. So again the timer is off, so no need to worry about the timer though. Still, if you can answer quickly, that is good, but while being quick, make sure you do not get it wrong. So जल्दी वैसे करो तो अच्छी बात है, इसमें no problem, और जल्दी करने में कोई गलत ना करना, इस बात का जरूर साथ में ख्याल रखना. And here is the link. So the link is coming in the chat window. So I have pasted the link, so you can simply click on that link and join it. Have you all got the link? Okay, that's good. Okay, so yes, okay, be quick. Good. Yeah, we'll. Okay, 25 students have joined. 20, 32, 33, 34, 5, 36. So waiting for a few more. 42, 43, 44.
So close to 50 students have joined, waiting for the another 10 or 12 students. So we'll wait for a few more seconds. So please make sure you join at the earliest. Okay, very good. So that's really good. So 59, 60, good. Okay, Prableen has raised hand. Yes, Prableen, are you facing any problem? So I hope it is resorted. So okay, so we start it here. Be ready. So 60 students have joined. So 1 or 2 maybe haven't. So just be quick. 3, 2, and 1. Here's the first question. It's a very simple question. The poem on friendship has been written by the poet name. The poet name is what you need to write. Okay, be quick. Yes. So most of you have answered. So last 3 seconds. I'm ending it in 3, 2, and 1. So here's how the leaderboard looks like. So that was a very simple question. I am sure most of you got it right. It's good. So Mohit, Gurman, Ekaj, Simranjeet, Pratham, Disha, and 55 students got it right. Only 5 got it wrong. But anonymous is not the right answer. Anonymous was the poet of the other poem. जो दूसरी poem थी prayer of the woods. So जो woods है वैसे सिंपल सी बात है. देखो woods जो है वो अपने लिए बोल नहीं सकते. woods जो जंगल बोल नहीं सकते. तो anonymous ने लिखी है woods वाली poem जो है. और ये जो poem है that is written by Khalil Gibran. Okay, this is the next question. Be ready. 3, 2, and 1. So we give our friend dash and in turn get dash. So पहली blank में कौन सा word आएगा वो first पहले आएगा, दूसरी वाला दूसरे नंबर पे आएगा. So make sure the order is right. पहले कौन सा word है, दूसरे नंबर पे कौन सा word है. So जो first blank है उसमें आने वाला word पहले आना चाहिए, second वाला बाद में आना चाहिए. दोस्त को क्या देते हैं, बदले में क्या मिलता है हमें. So the last few seconds, I will wait for 5 or 6 seconds more. So just be quick. Okay, so a few more seconds. So I'm going to end the question in 3, 2, and 1. So here's what it is. Okay, so that's good. 58 students have answered, and let us see. Mohit, Gurman, Ekaj, Simranjeet, Disha, and Mohul. 38 students got it right. So in the first blank it should be love, and second it should be gratitude. So that is the right answer according to the poem. तो वैसे तो कई चीजें हो सकती हैं, but we are sticking to the poem. जो poem में जो चीजें बताई गई हैं उसी के हिसाब से चल रहे हैं. So that is what we need to do. Okay, question number 3 coming up on your screen. 3, 2, and 1, go. Do we fear to say no to our friend? Is it true or false? Do we fear to say no? दोस्त को ना कहने से हमें डर लगता है. क्या ये सही है या गलत है? True है या false है? That's what you need to tell. Okay, the last 5 seconds. I'm going to end the question in 3, 2, and 1. So let us see how the leaderboard looks like. I'm sure many of you got it right. So here I can see Mohit, Ekaj, Simran, Disha, Harman, Manpreet. These are the names that can be seen. So I don't know what the confusion was. Many got it wrong. 38 students got it right. 20 got it wrong. It should be false. So we do not fear. So हमें डर नहीं लगता. No कहने से yes कहने से डर नहीं लगता. तो यदि क्वेश्चन में उसने कहा कि we fear, हमें डर लगता है, so that is wrong. गलत बात है, ये false है. Okay, so let us see question number 4. Okay, so here we go. We need to proclaim our love for our friend. हमें अपना दोस्त प्यार proclaim करना पड़ता है, बताना पड़ता है दोस्त को. So क्या ये true है या false है?
Is it true or false? Okay, that's good. I'm ending the poll in the next 5 seconds. So, okay, I'm ending it in 3, 2, and 1. So here we go. Let's see what the leaderboard looks like. So we have Mohit, Simranjeet, Disha, Harman, Manpreet, Deep, and 42 students got it right, 16 got it wrong. Beta false आना था कि हमें प्रोक्लेम नहीं करना पड़ता, अपना लव प्रोक्लेम नहीं करना पड़ता. So उसने कहा था प्रोक्लेम करना पड़ता है. That is false, गलत चीज दी है. And last question of this poem. इस poem में से last question करने जा रहे हैं. Sharing our joys and sorrows with our friend refreshes our heart like the dash. तो पोइम जिन्होंने पढ़ी है अच्छी तरह से उनको तो उनसे पता होगा जरूर, फॉर श्योर. So what refreshes our heart like the dash, जो joys and sorrows हम शेयर करते हैं उससे हमारा दिल तरोताज़ा होता है. किसकी तरह तरोताज़ा होता है? So पोइम में क्या बताया गया था, किस तरह हमारा हार्ट जो है रिफ्रेश होता है. In the last few lines the answer was given. So those who have read the poem properly, और अभी भी जिन्होंने नहीं पढ़ी, you can read it again. You can watch the videos also. सारे poems की videos भी बने हुए हैं वहाँ पे. Okay, we have a few more seconds. I'm going to end this in the next 5 seconds. So just be quick. Do select any answer. यदि नहीं भी आता, चलो जो answer आपको ठीक लग रहा है, you can select that answer. So I'm going to end it in 3, 2, and 1. So let us see. So how does the leaderboard looks like? Finally एक बार फिर देख लेते हैं. And finally we have Mohit, Simranjeet, Disha, Harman, Manpreet, and 28 students got it right. काफी बच्चों का गलत भी हुआ है, 28 का सही हुआ है, बीच में आधे students का ठीक हुआ है. The answer was morning dew. So you can come back to Zoom. You can see the leaderboard over here. ठीक है. So यही क्वेश्चन 5 थे हमने जो इस पॉइंट में से किए हैं. And okay, so we can see Mohit, Jasdeep, and Disha. So these are the names that are appearing on the leaderboard. Rajvinder, Christina, Harman, Jasmeet, Rupali, Vanshu, Jaswinder, Mandeep, Mohit, Manpreet, Simranjeet. These were the students who got all the answers right. And you can come and see the screen देख सकते हो इसमें. So many of you got all the answers right. जो सभी आंसर जिनके ठीक थे वो थे apart from these 3. उसके अलावा मोहित, जसदीप, दिशा के अलावा हरमनदीप, मनप्रीत, हिमांशु, सिमरनजीत, रूपाली, राजविंदर, आस्था, गुरलीन, जसमीत, जसविंदर और श्रुति and Christina. So these got all the answers right. So बाकी भी you can see the names जिनका एक ही गलत हुआ है. Okay then. So thank you. That was a good quiz. And now we move on to our next part. So is it clear up to this point to everyone? Anyone has any doubt, any question, you can ask me by raising your hand. And before we proceed, so basically we have done the part from the books, and now we have to do the grammar part. So we'll quickly do the grammar part. And before we proceed further, basically I will ask you to rest your eyes for 20 seconds. So actually we should do this thing after every 20 seconds, after every 20 minutes. So हर 20 मिनट बाद थोड़ा सा आंखों को रेस्ट देना चाहिए. So the period is a bit longer. So you can simply close your eyes for 20 seconds, or you can look at a distant object, look away from the screen for 20 seconds. 20 सेकंड के लिए आंखों को थोड़ा रेस्ट दे सकते हो. So what you can do is basically उसमें आंखें बंद भी कर सकते हो 20 सेकंड्स के लिए, और आंखों को थोड़ा झपका सकते हो 20 सेकंड्स के लिए, और you can look at an object 20 feet away. So अपने से 20 फीट दूर कोई दीवार को देख सकते हो, या स्क्रीन से दूर कोई, if there is some greenery around, कोई ग्रीनरी है, कोई घास वगैरह या कुछ ऐसी चीज नजर आ रही है, पेड़ नजर आ रहे हैं, तो you can look at the
freeze as well. So for 20 seconds, you can just give rest to your eyes, and you should do it after every 20 minutes. So normal class में भी जैसे 40 minute की class है, so in the mid interval, you should do it for 20 seconds. Okay then, so I hope all of you have given rest to your eyes, and here we begin. So now we move on to our grammar part, and we have 2 topics in grammar. So let us see what the first topic is, and the first topic is determiners. So let us quickly revise what determiners are. एक बार जल्दी से फिर से इसको समझ लेते हैं. Determiners क्या होते हैं? यदि if you want to know in detail, ज़्यादा यदि डिटेल में करना है तो अगेन हर चीज़ में बार बार बता भी रहा हूँ, हर चीज़ का वीडियो बना हुआ है, लेसन्स के भी वीडियोस बने हुए हैं, क्वेश्चन आंसर्स के भी बने हुए हैं, और ग्रामर के भी बने हुए हैं. सभी चीज़ों के वीडियो बना के गूगल क्लासरूम में डाले हुए हैं. सो यू कैन वॉच दोज वीडियोस एट एनी टाइम. कोई चीज़ नहीं समझ लगी तो आप उसको देख सकते हो, क्योंकि अभी तो टाइम थोड़ा ही है, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं करेंगे, ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा करेंगे. डिटेल में करना है तो आप पढ़ सकते हो, वहाँ पे जाके देख सकते हो. और बात करें डिटर्मिनर्स की, सो अबाउट डिटर्मिनर्स वी आर डिस्कस. डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर नाउन्स. सो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन्स के आगे लगते हैं. नाउन तो पता ही है सभी को, नाउन संज्ञा को कहते हैं. तो नाउन वाले वर्ड्स के आगे कुछ वर्ड्स हम लगाते हैं एडजेक्टिव्स की तरह. एडजेक्टिव्स नहीं होते, ये एडजेक्टिव्स की तरह होते हैं. सो उनको डिटर्मिनर्स कहते हैं. एक तो उसमें कई कैटेगरीज है, ए, एन और द. सो दीज आर्टिकल्स आर पार्ट ऑफ डिटर्मिनर्स. ये जो आर्टिकल्स हैं ये भी डिटर्मिनर का हिस्सा है, ठीक है. और ए कहाँ लगाते हैं, एन कहाँ लगाते हैं, इसके बारे में काफ़ी बातें कर चुके हैं. ए और एन हमें क्या फ़र्क है? एन वॉवल्स के साथ लगता है, ए और द जो ए या नॉन वॉवल्स के साथ लगता है. द तो खैर सभी के साथ लग सकता है. और ए और एन जो है वो सिंगुलर के साथ लगता है, द प्लूरल के साथ लगता है. और द लगता है कोई स्पेसिफिक किसी खास चीज़ की बात कर रहे हो तो द लगता है. किसी कोई भी एक चीज़ की बात करें तो ए और एन लगता है. हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी पहले. डेमोस्ट्रेटिव्स जो है दिस, दैट, दीज, दोज, ये भी डिटर्मिनर्स है. कोई चीज़ पास है तो दिस, दूर है तो दैट, ज़्यादा चीज़ें पास हैं दीज, ज़्यादा चीज़ें दूर हैं तो दोज. तो दीज आर द वर्ड्स. और ये जो WH वर्ड्स हैं, कोई स्टार्ट में लगें तो ये वाले वर्ड्स लगेंगे. किसी सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में डिटर्मिनर लगाना हो, ठीक है, तो वो ये जो क्वेश्चन वाले वर्ड है ये लगते हैं. विच, कौन सा, हुज मतलब किसका, व्हाट मतलब क्या, ये जो वर्ड है ये भी डिटर्मिनर्स हैं. और जितने भी पोजेसिव्स हैं, माई, योर, आवर, देयर, हिज, हर, मेरा, तुम्हारा, उसका, ठीक ना, ये सारे जो वर्ड हैं दीज आर ऑल डिटर्मिनर्स. तो ये भी डिटर्मिनर्स ही होते हैं. और इसके अलावा हमने बात की थी क्वांटिफायर्स. क्वांटिटी जो बताते हैं, मात्रा, कोई चीज़ ज़्यादा है या कम है, ये हमें बताते हैं. तो उसमें 3 तरह के हैं. एक तो काउंटेबल, जो सिर्फ गिनती वाली चीज़ों के साथ वर्ड लगते हैं, जिन चीज़ों को गिन सकते हैं उनके साथ लगते हैं. तो वो है फ्यू, अ फ्यू, मैनी, ठीक है. फ्यू और अ फ्यू मतलब थोड़ा होता है, इसका फ़र्क मैंने बताया था. फ्यू मतलब बिल्कुल ही ना के बराबर, ए फ्यू मतलब थोड़ा, लेकिन जैसे 3, 4, 5 हो सकते हैं. फ्यू मतलब 0 या 1, और मैनी मतलब बहुत सारे. और द फ्यू भी था. द फ्यू मतलब खास, थोड़े, और कौन से थोड़े वो भी बताया गया है. एंड देन वी हैव मैनी मतलब बहुत सारे, सेवरल भी कई सारे, ईच मतलब हर एक, एवरी भी वही है. ईच और एवरी का फर्क भी मैंने बताया था. नो और नन मतलब कोई भी नहीं, ये भी वर्ड है, ये भी डिटर्मिनर है. नन मतलब कोई भी नहीं. और जो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल जिनकी गिनती नहीं कर सकते, जिनका वेट वगैरह हो सकता है, या भार तोल सकते हैं, या वैसे कर सकते हैं लेकिन गिनती नहीं कर सकते. तो जैसे मच मतलब बहुत सारा, बहुत ज़्यादा. मैनी और मच में ये फ़र्क है, मैनी भी ज़्यादा है, मच भी ज़्यादा. फ़र्क है, मैनी गिनती वाली चीज़ों के साथ लगता है, मच जिनकी गिनती नहीं कर सकते वहाँ लगता है. लिटिल और अ लिटिल में वही फ़र्क है जो फ्यू और ए फ्यू में है. तो लिटिल मतलब थोड़ा, लेकिन ऐसे इतना थोड़ा जिसको मतलब थोड़ा भी है और जो गिनती नहीं कर सकते. तो जैसे कोई लिक्विड है, सो लिटिल, अ लिटिल मिल्क, तो ऐसा हो सकता है मतलब थोड़ा दूध. तो दूध की गिनती नहीं कर सकते, हालांकि वॉल्यूम उसकी देख सकते हैं हम. द लिटिल, तो द लिटिल मतलब थोड़ा, और कौन सा थोड़ा वो भी बताया गया. और कुछ कॉमन है जो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ लग जाते हैं, जैसे सम, एनी, अ लॉट ऑफ, ये ऐसे वर्ड है, ये दोनों के साथ लग जाते हैं. एनी ज़्यादातर नॉट वाले सेंटेंसेस में लगता है. बहुत बार नॉट वाले सेंटेंसेस में हम एनी देखते हैं, या क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेस है वहाँ पे भी एनी लगता है. जैसे हम कहें डू यू हैव एनी पेन, तो क्या आपके पास कोई पेन है, डू यू हैव एनी पेन. यहाँ हम कह सकते हैं आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई मनी नहीं है, कोई पैसे नहीं है. सो वहाँ पे लगा सकते हैं. अलॉट ऑफ मतलब बहुत सारा, सम मतलब थोड़ा. तो ये चीज़ें दोनों के साथ लग जाती हैं. और उसके बाद नंबर्स ऑर्डिनल्स होते हैं.
1 2 3 4 ये भी सारे डिटर्मिनर्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये भी डिटर्मिनर्स हैं. So he came dash in the class, या he stood dash in the class, he stood first in the class. So first भी determiner है, second या last या next ये सारे determiners हैं. So all these words are determiners. So I hope you have got the idea what the determiners are. और उसमें fill in the blank type के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, तो you can decide कौन सा उसमें आएगा. So once again we are going to discuss this through a quiz. एक और फिर quiz करेंगे, और just be ready for the next quiz. तो थोड़ा थोड़ा ही पार्ट है अभी. एंड एज आई सेड कि अभी तो जो मतलब ब्रीफ में किया. सो इफ़ यू वांट टू गो इन डिटेल, पूरी डिटेल में करना चाहते हो तो जरूर वीडियो देखना. सो यू स्टिल हैव टाइम, काफ़ी आज टाइम है. सारे 5 टॉपिक हैं तो 5 वीडियोस भी देख लोगे तो इट विल ओनली टेक लेस देन एन आवर. सो 1 घंटे के करीब ही लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा खैर उसमें. ओके, सो लेट अस सी व्हाट आवर नेक्स्ट क्विज इज. आई होप यू आर ऑल रेडी फॉर द नेक्स्ट क्विज. सो जस्ट बी रेडी. So in this quiz we are going to have 10 questions instead of 5, क्योंकि बड़ी सिंपल क्विज है. मैं तेज चलूँगा, सो स्लो नहीं करूँगा. जस्ट बी क्विक. इसमें थोड़ा टाइमिंग का भी, चलो वैसे टाइमिंग का कोई फ़र्क तो नहीं रखेंगे, बट स्टिल यू हैव टू बी अ बिट क्विक. थोड़ा कोशिश करना मैं, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा. तो आई विल एंड द क्वेश्चंस क्विकली. जल्दी क्वेश्चंस को मैं एंड करता जाऊँगा. सो हियर इट इज़. जस्ट अ सेकंड. So I'm going to share the link in the chat window. So here is the link. Okay, so please enter by clicking on the link. Just try to be quick. Okay, 5 6 7 8 10 11. Okay, good. 30 33 34 38. So most of you have joined. Okay, very good. 47. Okay, so 50 students have joined. Still waiting for the last few. थोड़े से बच्चे बचे हैं, तो just be sure. So I'm going to start it in the next 5 seconds. So I'm going to start the quiz in 3 2 and 1. So here we begin. So the first question is coming up on your screen in 3 2 1, and here it is. So choose the right word. This is a very simple quiz. There are so dash games to choose from. Dash games. तो मेन तो जो ठीक है ना, जो ब्लैंक के बाद वाला वर्ड है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, बिकॉज डिटर्मिनर्स आर रिलेटेड टू द नाउन्स. सो गेम्स के साथ लगेगा. गेम्स के साथ क्या आएगा, तो गेम्स देखना है काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है. यस गुरलीन, आर यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम? गुरलीन बेटा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. यस सर या नहीं हो रही. सॉरी, सर गेम ज्वाइन नहीं हो रहे थे. क्या एरर क्या आ रही, क्या मैसेज क्या आ रहा है वहाँ पे? सर लोडिंग हो रही है, बाद में फिर से वही विंडो ओपन हो जा रही है. उसमें बड़ा नेटवर्क इशू भी हो सकता है. एक बार उसको क्लोज करके दोबारा ओपन करो. एक बार सारा जो ब्राउजर है उसको एक बार क्लोज कर दो. क्लोज करके फिर दोबारा से लिंक पे क्लिक करने की कोशिश करना है. ओके सर. तो इट माइट बी समटाइम्स इट इज ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम्स आर देयर एट टाइम्स. तो उसकी वजह से हो सकता है. ऐसा हो भी जाए तो उसको एक बार ब्राउजर को क्लोज कर दो, विंडो क्लोज कर दो ब्राउजर की, फिर दोबारा यू कैन ओपन. ओके, सो मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द आंसर. सो लेट अस क्विकली प्रोसीड. So let us see how many got it right and who are there on the leaderboard. I am sure many of you, most of you got the answer right. So again we can see Mohit, Simranjeet, Pratham, Rajvinder. 40 students got the answer right. 40 said many. ठीक है. So 100 के साथ बेटा ये lot of नहीं आ सकता. 100 ये lot of वैसे ही बात नहीं बनेगी. 100 के बाद A तो लगेगा नहीं. 100 ये lot of नहीं आएगा. So much games, much क्यों नहीं आएगा, क्योंकि गेम्स की गिनती कर सकते हैं 1 2 3. तो जो काउंटेबल है उसके साथ मैनी लगता है, अनकाउंटेबल के साथ मच लगता है. सो कोई ऐसी चीज़ हो जिसको गिन नहीं सकते फिर मच लगना था, बिकॉज गेम्स कैन बी काउंटेड. 1 गेम है, 2 गेम है, 3 है, 4 है. सो मैनी आना था यहाँ पे. सो ओके, वेरी गुड, वेल डन दोज हु हैव गॉट इट राइट. सो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
So second question. So again ये भी मिलता जुलता ही है, ब्लैंक के बाद देखना है, ब्लैंक के बाद क्या है, कंप्यूटर गेम्स. So कंप्यूटर, सिर्फ कंप्यूटर नहीं देखना, कंप्यूटर के साथ गेम्स भी देखना है, क्योंकि वर्ड कंप्यूटर अकेला वर्ड नहीं है, कंप्यूटर गेम्स वर्ड है हमारे पास. ठीक है, कंप्यूटर गेम्स के लिए कौन सा डिटर्मिनर यूज करेंगे? टू बाय, हाँ थोड़ा पहले भी वैसे देख सकते हो, लेकिन ज़्यादा तो ब्लैंक के बाद वाला वर्ड देखना है. मोर इम्पॉर्टेंट इज द वर्ड आफ्टर द ब्लैंक. और हालांकि ब्लैंक से पहले भी थोड़ा सा देख सकते हो, जैसे अभी हमने पिछले में देखा सो लिखा था, तो सो के साथ ए लॉट ऑफ नहीं आ सकता था, तो इसलिए पहले देखना भी कहीं कहीं जरूरी है. सो मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द आंसर, सो लेट मी क्विकली एंड इट. सो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं मैं दूंगा, क्योंकि वी हैव 10 क्वेश्चंस, तो इसलिए तेज तेज करेंगे जरा. सो आई एम गोइंग टू एंड इट इन 3, 2 and 1. So let us see how you have done in this question. So it's again Mohit, Simranjeet, Pratham, Rajvinder, Gurjeet. So these are the students who have done well. 44 students got it right. Okay, very good, well done. And let us see, just a second. So 44 got it right, and so the answer basically was, okay, just a second. Okay, so okay, let's move on to the next question. So the answer was some, sorry. So to buy some computer games, so some was the answer. So some जो है countable के लिए भी लगता है, non uncountable के लिए भी लगता है, दोनों के लिए लगता है. Okay, so most of you have got it right, I think. Visitor dash shops or shops के साथ क्या लगाएंगे? We have to find some word. Okay, so I'm going to end it very quickly in the next 3 seconds. 3, 2, and 1. So here is the result. So let us see what the result is. On the leaderboard we have Mohit, Simranjeet, Rajvinder, Gurjeet, Himanshu, and Ekaj. So these are the names over here. Many of you have done equally well. बहुत सारे बच्चे जिन्होंने और ठीक किया है. यहाँ पे several आना था, several भी मतलब कई सारे, बहुत सारे. Several का मतलब यही है. So several shops. तो यहाँ पे many होता तो many भी हो सकता था, लेकिन जो ऑप्शंस हमें दिए हैं हमने उन्हीं में से चूज करना है. So many होता तो फिर several नहीं होना था. आमतौर पे एक आंसर, एक ऑप्शन ही राइट होगी. तो many से मिलता जुलता जो दूसरा वर्ड जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, वो सेवरल है. सो एनी शॉप्स तो नहीं होना था, एनी तब होना था. अब यहाँ पे नॉट होता या कोई इंटेरोगेटिव होता, फिर एनी होने के चांस थे. तो विजिटर नो शॉप्स भी नहीं होना था, नो के साथ फिर शॉप आना था, शॉप्स नहीं आना था. ठीक है, सो इसलिए सेवरल आना है यहाँ पे. सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. 3, 2, and 1. He told them that two games are exactly the same. Dash two games. Two games के आगे क्या लगेगा? Two games के आगे हमने we have to use a determiner. That's what we need to see. Okay, so just be quick. So we are on question number 4. Question number 4 चल रहा है, and we have to do a few more. और भी थोड़े से करने हैं हमने. Okay, so I'm going to end it in the next 3 seconds. So let it be 3, 2, and 1. So here is the final result of this question number 4. And here we have again Mohit, Disha, Gurman, Jaswinder, Harmanjeet, Gagandeep. So 25 students got it right. No, sorry, 25 didn't get it right. 18 got it right. So the actual answer was, he told them that no two games are exactly same. Many two games, बेटा line बननी नहीं थी. Many two games. Many two games नहीं आना था. Much two games भी नहीं आना था. Much तो वैसे नहीं लगना. Much जो है accountable नहीं है. No two games are exactly same. कोई भी दो गेमें एक जैसी नहीं है.
कोई भी 2 गेम्स एक जैसी नहीं है. सो नो 2 गेम्स. सो नो भी इज आल्सो डिटर्मिनर, मैंने बताया था. ओके, सो सिर्फ 18 स्टूडेंट्स का राइट हुआ है, उसकी वजह से काफ़ी चेंज भी आ गई है, लीडर बोर्ड पे काफ़ी चेंजेस आई हैं. सो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. सो स्टिल वी हैव 5 क्वेश्चंस लेफ्ट. सो अभी काफ़ी टाइम है, काफ़ी पोजीशंस ऊपर नीचे हो सकती हैं. स्टिल आई एम श्योर मेनी ऑफ यू कैन क्लाइंब द लैडर. This is question number 5. So waiting for a few more. Okay. Okay, so the next 3 seconds, I'm ending it in 3, 2, and 1. So again, we have to look at action games. Okay, let us see what it is. On the leaderboard, we have Mohit, Disha, Gurman, Jaswinder, Gagandeep, Jasdeep. These are the students. ठीक है. सो यहाँ पे यानी आना था वरंट. सो वरंट मतलब वर नॉट. सो वर नॉट मतलब वरंट. मैंने बताया भी था, हिंट भी दिया था, नॉट लगाओ ज़्यादातर, तो वहाँ पे यानी के चांस बनते हैं. सो ही सेड दैट देयर वरंट एनी एक्शन गेम इन द शॉप. की दुकान पे कोई भी एक्शन गेम्स नहीं थी. सो वरंट एनी एक्शन गेम्स. सो एनी वाज द राइट आंसर. गुड. 40 of you got it right. And we quickly move on to the next question. Okay, so here we have, there was an animal game, but he didn't think it would be dash fun for me. Dash fun for me. Fun. So you have to look at the word fun. So जो fun या मजा, तो उसके लिए फन के साथ हमने डिटर्मिनर लगाना. जो डिटर्मिनर है उसने बाकी वर्ड्स की बारे में बात नहीं करनी, उसने बात करनी है फन के बारे में. So what is the determiner that would determine what kind of word fun is? Okay, so I'm ending it in the next 3 seconds. So 3, 2, and here is the last second. 1. So let us see how many got it right and how many got it wrong. On the leaderboard, we have Mohit, Gurman, Jaswinder, Gagandeep, Jasdeep. So these are the students. And 26 got it right. Would be much, much another. Okay, didn't think it would be no fun for me. So didn't think, और didn't यहाँ पे एक नॉट पहले लगाया तो फिर एक नो लगने के चांस कम ही है. So didn't think it would be much fun for me. So fun को माप नहीं सकते, फन को गिन नहीं सकते. तो much आना था, मैंने नहीं आना था वहाँ पे. Much was the right answer. And let's see what the next question is. Dash information provided was very useful. इसमें क्या लगना है कि स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है, किसी खास की और इशारा है या वैसे ही बात की गई है. Dash information you provided was very useful. Okay, more than half of the students have already answered. Waiting for the remaining few. Okay, let us see. So just be quick. I'm going to end it in the next 3 seconds. So I'm starting the countdown. 3, 2, and 1. So when I start the countdown, beta, you should immediately answer. So because countdown means that it is going to end. So कोई भी जो आंसर दिमाग में आ रहा है तो you can choose that answer when the countdown starts. Or again, it is good. Mohit, Jaswinder, Gagandeep, Harman, Disha. So these are the students who have done well, or 19 students got it right. So the little information. So the little information you provided was very useful. So information के लिए हम little word use करेंगे हम. और little के आगे the little लगा. The little क्यों लगा? क्योंकि specific है information, खास information की बात कर रहे हैं कि वो information कौन सी information you provided जो तुमने मुझे दी थी. तो तुमने जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी थी वो बड़ी यूजफुल साबित हुई. तो जो थोड़ी इन्फॉर्मेशन तुमने मुझे दी थी, चाहे थोड़ी सी दी थी, वो बड़ी यूजफुल हुई. सो द लिटल वाज द आंसर. ओके, लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज. A few more questions.
I bought this car a dash years ago. So years is the word that you need to look. सारा बाकी कार को नहीं देखना, हमने years को देखना है. So years के लिए कौन सा word लगाएंगे? That is what is important. ठीक है. So few, little, many, plenty. इनमें से कौन सा आएगा? That we have to decide. Okay, just be quick. Last 5 seconds. Okay, so I'm going to start the countdown of 3. So I'm going to end it in 3, 2, and you can click now 1. And here is what the answer looks like. I bought this car a dash years ago. So on leaderboard, Mohit, Jaswinder, Gagandeep, Harman, Disha, these are the students. And most of you got it right. It was few years ago. Few is countable, years is countable. So years को गिन सकते हैं, few आएगा. So little नहीं आना था. Little तो जो चीज count नहीं होती, little वहाँ लगता है. A many years ago नहीं आना था क्योंकि अ लगा हुआ है. अ के साथ many नहीं लग सकता. Many तो आ सकता है. Many के बाद A तो हो सकता है. So many years ago ऐसा तो हो सकता है. Many years ago, लेकिन A many years ago ये नहीं हो सकता. Plenty के साथ हमेशा off लगता है. A plenty of. तो plenty के साथ plenty तो हो सकता था यदि मतलब plenty भी वैसे हालांकि यहाँ पे नहीं आना था. So plenty of मतलब plenty भी ज़्यादातर जो है uncountable के साथ ही ज़्यादा लगता है वैसे भी, और इसके साथ off लगता है. So few was the right answer. So this is the second last question of this quiz, question number 9. Dash the 16 teams in the cup were represented with their flags. The 16 teams. तो 16 teams के साथ कौन सा determiner लगेगा? That we need to see. जितने भी वर्ड्स वहाँ पे दिए हैं वो है सारे डिटर्मिनर्स ही हैं. ऐसा ना सोचना कि इसमें से कोई डिटर्मिनर नहीं है. ठीक है ना, सारे है तो डिटर्मिनर्स ही हैं वहाँ पे. Okay, so I'm ending it in the next 5 seconds. So just be quick. To be answer नहीं भी पता लग रहा तो जो लग रहा है उसको चूज कर सकते हो. I'm starting the countdown now. The countdown starts from 3, 2, and 1. So let us see. Okay, so let's see the leaderboard. देख लें जल्दी से. So it's Mohit, Jaswinder, Gagandeep, Harman, Disha, Jasmeet. 48 of you got it right. यहाँ पे all आना था, all ही सही आंसर है इसमें. All the 16 teams. Okay, the last question of this quiz, determiners. Be ready. Good luck. She got her license without dash problems. Without dash problems. Problems भी है और without भी है. दोनों को देखना है. Problems को तो देखना ही देखना है. Without को भी देखना है. देखना जो without है वो भी एक तरह से नेगेटिव वाला ही है. जैसे बिना, जिसे हम कहते हैं without मतलब बिना डैश प्रॉब्लम्स के. So बिना डैश प्रॉब्लम्स की कौन सी डैश प्रॉब्लम्स है? So the last 3 seconds. I'm starting the countdown here. So the countdown begins. 3, 2, and 1. So here is the final result. So you can come back to Zoom and see the final leaderboard, the final positions. So all of you can come back. So here we have Mohit, Jaswinder, and many students got it right. And so 44 of you got it right. Any another is made without any problems. And you all can come and see the leaderboard as I said. So here's how it looks like. Gagandeep, Mohit, Jaswinder. तो कई बार वहाँ पे नाम और होते हैं, यहाँ पे चेंज हो जाते हैं बिकॉज सभी के बराबर हैं. ये रैंडमली या कोई लकी हो सकता है जिसका नाम आ जाता है. कई बार 10 स्टूडेंट्स होते हैं जिनके नाम सेम होते हैं. ठीक है, लेकिन 10 के नाम एकदम वहाँ पे नहीं आ सकते. सो सम आर लकी. सो कई बहुत जिनके नाम वहाँ पे आ जाते हैं. थोड़ा सा तेज करने पे भी मे बी वो भी थोड़ा चलो इफेक्ट होता है वैसे तो. सो जो यहाँ पे नाम नजर आ रहे हैं, हालांकि वहाँ पे पहले मोहित का नाम नजर आ रहा था टॉप पे, बट हेयर सो बेसिकली एक्चुअली ऑल आर इक्वल. ये तीनों स्टूडेंट्स जो है बराबर है वैसे तो. तीनों ने सारे आंसर राइट दिए हैं. गगनदीप ने, मोहित ने एंड जसविंदर ने. सो वेल डन ऑल 3.
तो इनके सारे आंसर सही हुए हैं, तीनों फर्स्ट है। और सेकंड है सुखराज, जसदीप और दिशा एंड जसमीत। ये 4 स्टूडेंट जो है वो सेकंड है। बाकी थर्ड वाले काफ़ी बच्चे हैं, यू कैन सी योर नेम्स ओवर देयर। सो मेनी ऑफ यू हैव डन वेल, ओके, वेल डन एवरीवन। सो ऑल ऑफ यू डिड इट रियली वेल। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस थिंग एंड नाउ वी हैव कम टू द लास्ट पार्ट। वैसे तो टाइम हो भी गया है, लेकिन जल्दी जल्दी करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट और लगेंगे। सो आई होप you will remain here. So ज़्यादा टाइम नहीं लगना, 10 मिनट में we'll finish the whole thing. So let me know if everything is clear up to this point. Have you all understood? Have you all enjoyed the session so far? Okay, that's really good. So now we move on to our last topic. So without any further delay, so let me share the screen and come to the last topic. So here we have our last topic, that is non-finite verb. So non-finite verb की बात कर लेते हैं जल्दी से। So non-finite verb में क्या क्या चीज़ें आती हैं? पहली चीज़ आती है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मीन्स टू। इन्फिनेटिव जहाँ पे भी लगा होता है तो सिंपल टू ही लगाते हैं। वैसे बियर इन्फिनेटिव भी हमने किए थे, जैसे मैंने कहा यहाँ पे ब्रीफ में करेंगे, डिटेल में करना है तो वीडियो देख सकते हो। तो हालांकि ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सो जहाँ पे भी लिखा हो इन्फिनेटिव तो आंखें बंद करके वहाँ पे टू लगा देना है। तो वैसे बियर इन्फिनेटिव भी होता है। बियर इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो यहाँ तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जहाँ पे इन्फिनेटिव लिखने के लिए कहा जाए हमें। और जेरंड, जेरंड का सिर्फ एक ही मतलब है, दूसरा जेरंड का कोई मतलब नहीं है। जेरंड ओनली मीन्स ING। तो जहाँ पे भी जेरंड लिखा हो और हमें कहा जाए कि यूज अ जेरंड, ऑल दैट वी नीड टू डू इज पुट एन ING। सिर्फ ING वहाँ पे लगा देना है। प्ले का प्लेइंग, स्विम का स्विमिंग, ठीक है, गो का गोइंग। सो वट एवर वर्ड इज देयर, जेरंड कहा जाए तो जेरंड का मतलब ING होता है। सो आई होप एवरीवन इज लिसनिंग क्लियरली। एंड देन वी हैव पार्टिसिपल। यदि पार्टिसिपल कहा जाए, पार्टिसिपल में 3 तरह के पार्टिसिपल होते हैं। यदि कहा जाए प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाओ तो ING लगाना, जैसे जेरंड में ING है तो यहाँ पे भी ING। यदि कहा जाए पास्ट पार्टिसिपल लगाओ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ED, जैसे ज़्यादातर ED लगता है। प्ले है तो प्लेड थर्ड फॉर्म हो जाती है, मतलब जो भी थर्ड फॉर्म है दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। और एक थर्ड है जो कम यूज होता है, दैट इज परफेक्ट पार्टिसिपल। सो परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यदि सिर्फ पार्टिसिपल लिखा है तो यू विल हैव टू चूज, फिर सोचना पड़ेगा कि प्रेजेंट लगाना है या पास लगाना है। तो यदि उसने दिया हुआ कि प्रेजेंट लगाओ फिर तो सिंपल है, ING लगा दो। पास दिया तो ED लगा दो, परफेक्ट दिया तो ये लगा दो। तो यदि सिर्फ पार्टिसिपल लिखा है देन यू विल हैव टू डिसाइड कि प्रेजेंट लगना है या पास लगना है। और डिसाइड कैसे करना है, मैंने बताया था। प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है कोई चीज़ एक्टिव स्टेट में हो, हिल रही हो, चल रही हो, काम हो रहा हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। कोई चीज़ पैसिव स्टेट में हो, एक जगह पे पड़ी हो, हिल ना रही हो, ठीक है, मतलब हो चुका हो वो चीज़, मतलब और स्टिल हो, तो वहाँ पे हम पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। सो बाकी परफेक्ट पे जाने की तो बात नहीं। परफेक्ट मतलब एक काम करके फिर हमने दूसरा काम किया था तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। सो यू कैन वॉच द कंप्लीट वीडियो। पूरा डिटेल में देखना है तो जरूर उसको देखना। तो अभी तो फिलहाल इतना ही काफ़ी है। सो इतना ही समझ लोगे इसको, इसका स्क्रीनशॉट अच्छी तरह से ले लोगे तो स्टिल यू विल गेट एटलीस्ट 8 to 9 क्वेश्चंस राइट आउट ऑफ 10। तो इतने में भी इतनी बात समझ लगी तो 8 या 9 आंसर 10 में से अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन अप टू दिस पॉइंट एंड वी आर गोइंग टू हैव आवर फाइनल क्विज। सो आखिरी क्विज करने जा रहे हैं, सिर्फ 5 क्वेश्चंस करेंगे फाइनल क्विज में। एंड देन so this is the last quiz. So let me once again share the quiz with you, so just be ready. And the 5th quiz of the day, the final quiz of the day is coming up in front of you. Just wait for a few more seconds. So here we go, and I'm going to share the code with you in the next few seconds. So here is the code. I'm going to paste it in the chat window. So I hope the code is visible to all of you. Just simply click on the code and join the quiz. So okay, just be quick. Very good. So we'll quickly start it within a few seconds. 25 students have already joined and a few are still there to join. So just be sure.
So 43, 44 have joined now. Just a few more seconds. Okay, I'm going to start in the next 5 seconds. So 3 or 4 students are remaining, but they will have to be very quick. Okay, so here we begin. 3, 2, and 1. This is the first question coming up in front of you. So spelling, you have to take care of the spellings. So gerund. Because I hope most of you have got it right. So we'll wait for the last 3 seconds. I'm starting the countdown here. It's 3, 2, and 1. Okay, very good. Everyone has answered. Really good. And let's see quickly the leaderboard. So again, Mohit, Gagan, Simran, Pratham, these are the students. Dancing 43 got it right. Only 5 students got it wrong. Maybe spelling mistake. So make sure you get the spelling right. So quickly we move on to the next question. Question number 2. So infinitive, just make sure you look at the word infinitive and what do we use for infinitive. So what does infinitive mean? Infinitive का क्या meaning होता है? तो ये हमें पता होना चाहिए. So I'm ending it in the next 3 seconds. 3, 2, and you can quickly answer before I say 1 and 1. So here's how it looks like. So the leaderboard we can see again Mohit, Gagan, Simranjeet, Pratham, Jasmeet. These are the students. So Mohit's name is coming at the top. Really good. So I don't know why so many of you are answering it right. So he is indeed very lucky. Well done. And to eat. So infinitive I have clearly told you कि जब भी infinitive लगे तो सिर्फ to बेटा t और to लगता है साथ में. So for eating या eating नहीं आना था. Eating तो तब होता यदि gerund होता या present participle होता फिर eating होना था. So well done everyone. Okay, so next question. Question number 3. So which is these is not a participle. कौन सा इसमें से participle नहीं है? Right? Eating, eat या eaten कौन सा word है जो participle category में नहीं आता? So there are 3 participles we discussed. हमने discuss किया था 3 तरह के participle हमने discuss किए थे. और इनमें से कौन सा है जो participle नहीं है? Which of these is not a participle? So इसको ध्यान से देखना है नोट को. And we are going to end it in the next 5 seconds. And I'm starting the countdown now. The countdown begins. 3, 2, and you can select any answer before I say 1. So 1, and okay, very good, well done. Everyone has answered. And let us see how the leaderboard looks like. Again, Mohit, Gagan, Simranjeet, Jasmeet, Manpreet, Rajvinder. So these are the names at top. So eat was not a participle, so eat participle nahi tha. Eaten past participle hai, eating present participle hai. So eating और eaten ये जो दोनों थे. So 31 of you got it right. बाकी वैसे 20 students का गलत हुआ. इतना गलत होना नहीं चाहिए था. यदि ध्यान से देखा होता जो you are not looking very closely, ध्यान से नहीं देखा मेरे ख्याल से. Okay, so this is question number 4, second last question. पहले पार्टिसिपल फिल करना है. इसमें कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा या पास्ट पार्टिसिपल आएगा, कौन सा आएगा? मैंने बताया था एक्टिव स्टेट और पैसिव स्टेट. कोई चीज हो रही हो तो फिर क्या होता है, कोई चीज हो चुकी हो तो फिर क्या होता है.
Okay, so we'll end it in the next few seconds. So I'm beginning the countdown. 3, 2, and 1. So here is the leaderboard before the last question. So last question से पहले का leaderboard देख लेते हैं, and then so now Gagan, Simranjeet, Jasmeet, Rajvinder, Gurmandeep. So Mohit was at the top for the last many questions. So I think he got it wrong. ये वाला गलत हुआ है. So hearing another यहाँ पे hearing a noise, I turned around. So मतलब एक्टिव कोई काम हो रहा है, आवाज सुनाई दे रही है, आवाज सुनाई दी और मैं मुड़ा, आवाज सुन के मैं मुड़ा. तो आवाज सुनाई दे रही है, कोई चीज एक्टिवली काम कोई चल रहा है, सो कोई चीज एक्टिवली काम हो रहा हो, ठीक है. सो हियरिंग आना था, प्रेजेंट पार्टिसिपल आना था यहाँ पे. 24 गॉट इट राइट. सो हियर तो वैसे ही नहीं आना था, हियर तो पार्टिसिपल है ही नहीं, सिर्फ 2 ही पार्टिसिपल है. प्रेजेंट पार्टिसिपल है हियरिंग, पास्ट पार्टिसिपल है हर्ड. सो प्रेजेंट पार्टिसिपल आना था यहाँ पे. Okay, let us see what the last question is. So just be ready. Last question coming up on your screen. 3, 2, and 1. Children love dash, mud castles, gerund. Gerund, make का gerund क्या होगा? That we have to decide. Make का gerund. Okay, so it is a very simple question. gerund में एक ही चीज़ होती है, मैंने बार बार बताया था, एक ही चीज़ होती है. यदि ये भी गलत हो रहा है तो मतलब अच्छी बात नहीं है. I hope all of you get it right. I hope 100% of you get it right. And I'm going to end this last question in the next 3 seconds. The countdown begins. So you may select any option. 3, 2, and before I say 1, you can select and 1. So here is the final leaderboard for the day, the final leaderboard of the last quiz that we have done. It's coming in front of you. You can come back to Zoom. So Gagan, Simranjeet, Jasmeet, Rajvinder, Gurmandeep, and Jasdeep, these are the names appearing over here. And I can show you the whole leaderboard. वैसे तो ये सारे जैसे मैंने बताया, इसमें लक की भी बात है, सिर्फ ठीक होना ही सही नहीं है. So यहाँ पे देखते हैं नाम कौन सा आ रहा है. गगन, अनमोलदीप, गुरमन, अनमोलप्रीत, sorry, और गुरमन. So these are the name appearing here. काफी बच्चों ने सही किया. राजविंदर, गुरमनदीप, रितु, जसदीप, Anmolpreet, Sonia, Sahil, Disha, and Shruti, and many of you got it right. So जिनके सारे आंसर सही हुए हैं उनका देख लेते हैं. गगन, अनमोलप्रीत, गुरमन, नवजोत, श्रुति, जसमीत, जसदीप, दिशा, Rajvinder, Simranjeet, Sonia, Ritu, Sahil. So these got all their questions right. और जिनका एक गलत हुआ है वो है क्रिस्टीना, हरमनजीत, संजना, सिमरन, मनप्रीत, गुरजीत, कृष्ण गोपाल, मोहित, तुषार, हरमनदीप, दलजीत, जैस्मीन, रूपाली, नूर कमल, प्रबलीन, हरमन, सुमिंदरजीत, गुरलीन, अनमोल एंड आस्था. तो बाकियों के 2 से ज़्यादा गलत हुए हैं, जिनके 2 से ज़्यादा गलत हुए हैं. सो मेक श्योर you should try this quiz later on also. बाद में भी इसको ट्राई कर सकते हो. So I hope all of you were able to learn something. All of you must have gained something from this session. So it was a really good session. I really enjoyed it. And I hope you would have enjoyed it equally as well. So just make sure you prepare well. So just try to be honest when you answer the questions. So basically it's purely upon you. So you have been given the whole choice, the way you want to proceed. ठीक है. So you can be honest, you can be dishonest as well. ठीक है. So अपने आप ही आंसर्स देने हैं. You have to just submit. No one is looking at you. So only you, yourself, and of course God, and besides God, only you yourself are looking at yourself. So whatever you do, so that is between you and God, right? So you should be sincere, you should be honest, you should write the answers on your own without copying, without looking at the notebook. And if you do that, so that will be a very good moral victory for all of you. So I'm sure all of you are very honest. And again, instead of cramming, it will be better if you write your own answers. So I will appreciate it if you can write your own answers. Just make sure you keep a check on the grammar. So make sure you use the right tenses also. But even if you make a few mistakes, that is very much acceptable.
Okay then. So once again, so best of luck to all of you, and I'm sure you'll do well in the exam. So you will get the exam in Google Classroom tomorrow at 9 a.m. and you have to finish it in within an hour and submit it in the Google Classroom as soon as you finish the exam. And the last deadline, the time up to which you can submit is 12 p.m. But try to submit it by around 10 or 10:15 a.m. So somewhere between 10 to 10:15. So that will be a good thing to do. Okay then. So thank you all, and the best of luck to you. I am sure you will do well in the not only in the general English exam but in the exams that proceed afterwards. So I'm sure you'll do well in all the exams. Okay, thank you, and God bless you all. Stay safe, stay happy. Goodbye for now.